Welcome, welcome on. Jai Hind. So shall we start? If I'm audible. Yes, yes, sir. Okay, fair enough. So today there was a surprise rate cut, and again I think there is some RBI meet to be happening on 7th or 8th. कौन सी तारीख को है? If somebody can, when is the RBI meet due? Hello? सर कोई कंफर्मेशन नहीं, मुझे 2 मिनट दीजिए, चेक करके अपडेट करता हूँ. Fair enough. So due to that RBI policy, and today again being a Fed policy day, so nobody knows what will happen tomorrow morning. But I'm seeing a downside till say 16,400 if it's hold on to, and upside say maximum 16,800 to 16,900. And let's see what kind of statement we get from Powell. So based on that, let's see what happens tomorrow morning. तो अभी रात का प्लान करके है ना कुछ मिलने वाला है. मोटा मोटी रेंज बोल दूंगा तो डाउन साइड 16,400 फॉर टुमारो ओनली, upside 16,800 16,900 max. Bank Nifty again 34,700 downside, 35,500 to 35,600 maximum upside, because tomorrow being an expiry day and still there are call writers that are standing over there. Abhishek, will you add on to it? Yeah, sure. Everyone, Jai Hind, everyone. Hello, Amit bhai. अभी तो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट एज एवरीवन नोस इट्स क्वाइट बेरिश सिंस वी हैड दैट लिक्विडेशन मूव ऑन फ्राइडे. मैं तो मंडे को भी बेरिश था बट एग्जीक्यूशन ठीक से हो नहीं पाया एंड so Monday I had to exhibit a small loss, but today it gave plenty of good return, washing away the losses and then good gains. So the levels that I am seeing right now on my chart for Nifty are, and these are future levels, folks, not spot levels. I track future. So आज के down move में the maximum selling happened between 16,900 and 17,000, 16,998 futures levels. यहीं पे maximum short positions built है. And हम higher time frame पे देखें ना तो we have the maximum shorts in the system from 17,150 to 17,320, 330. So जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा market, I will not be carrying home any kind of positional longs. And if I look at the downside, as Amit Bhai was saying, 16,575 to 16,600 future levels, ये एक old buyers का reference area है. तो अगर कल हम कोई gap down के साथ open करते हैं, then this can be a zone where we can see some weak buying coming. Again, the reason why I call it weak buying is because most of it would be on intraday basis, and we need to see at least some consolidation and for a comparative analysis of volumes to see if it's strong buying or not. So for now it is weak buying. So these are the levels I have on my chart for Nifty futures, and since I am majorly an option writer on expiry, so I will play around with these levels depending on the kind of opening we get to sell options on one side. If I look at Bank Nifty futures, just one moment. In case of Bank Nifty futures, I am expecting a much more trending move in Bank Nifty tomorrow when compared to Nifty, क्योंकि आज Bank Nifty closing के time पे especially between 35,180 to 35,530 quite some heavy short sell side positions are built. अगर हम इसके ऊपर open करेंगे, just by chance the possibility is quite less, but again not zero. By chance, then we can see some mild up move and I would be selling puts. But if at all we open below this, we have a flat opening or we open below today's low, then 34,800 is the immediate reference that I am seeing in Bank Nifty. Again, I will look to play these levels and purely from an option writer perspective, because usually on Wednesdays and Thursdays I focus more on writing options than trading futures. That's it, Amit bhai, from my side. Okay, fine.
Sovit is here. Sovit, your views on the market, please, and any levels you want to suggest. Hello, Himanshu, are you talking to me? I'm not. Actually, I'm traveling right now, so after half an hour we can talk. Okay. Oh, okay, not a problem. Can I put my views, sir? Yes, go ahead. सी एक्चुअली मेरा व्यू पहले से भी बेरिश है ना. मैंने स्टार्ट में भी जब 5-6 सेशंस पहले भी मैं बोल रहा था कि मेरा व्यू ओवरऑल बेरिश है. अभी भी बेरिश टोन ही है. हाँ, आज का जो सरप्राइज या शॉकिंग रेट कट रहा है इसके लिए कोई तैयार नहीं था इवेंचुअली. हाँ, ये था कि कुछ था बट कुछ होगा से न्यूज़ आ गया था तो. बट प्रॉब्लम मुझे ये नहीं लगा है. प्रॉब्लम ये लगा कि जब हम कल की हॉलीडे था, इतना हाई बिल्टअप था भी नहीं सिस्टम में. हम काफी हद तक लाइट थे. पीसीआर भी इतना दिक्कत नहीं. गिरे क्यों? मतलब समझ नहीं आया. बेचा किसने और क्या बेचा? मतलब कोई फंसा तो था नहीं. यानी कि यहाँ पे एक्सेसिव शॉट्स क्रिएट हुए हैं. भाई मैं मान लेता कि लोग फंसे हुए हैं, कटे हैं. 70-80 लाख का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? 50-60 पॉइंट ड्रिफ्ट करेगा. निफ्टी की बात करूं तो 200 पॉइंट जाएगा बैंक निफ्टी. 400 पॉइंट निफ्टी साफ हो गया. वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि मतलब इस तरीके से अग्रेसिव शॉट्स कहाँ से किसने क्रिएट किए. तो 130 के आसपास मैंने ट्रेडिंग बंद ही कर दिया. मैं खत्म कर, समझ में वैसे भी कुछ नहीं आ रहा था. व्यू अभी भी बेरिश है. मेरा जो स्ट्रॉन्ग व्यू आएगा निफ्टी पे कन्वेंशन बाय, वो आएगा 17,400 के ऊपर. 16,600 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है सो माइट बी कि मैं अपनी कुछ होल्डिंग्स भी बेच दूंगा. बिकॉज फिर मेरा व्यू जाता है कुछ 15,300 के आसपास तक. आई नो आई एम टोनिंग क्वाइट वेरी मच बेयरिश नाउ, पर मेरे कैलकुलेशन और सेटअप्स के हिसाब से मैं 15,300 के आसपास तक के लेवल्स देखता हूँ. अगर 16,600 के नीचे क्लोज होता है तो मार्केट काफ़ी बेयरिश टोन में चला जाएगा. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. और फ्रेश बाइंग निफ्टी में लॉन्ग या होल्ड्स लंबे समय के लिए 17,400-500 से पहले मेरा कन्विक्शन सर नहीं बनेगा. ये मेरा पर्सनल व्यू है. 17,600 मेरी लास्ट होप है. उसके नीचे क्लोजिंग हो गया, आई विल लीव एवरीथिंग. Amit, if you can mention your levels in English. Okay. I'm so sorry, sir. Yeah. So my level is my super bearish level is a 16,600. If market will go and close below 16,600 level, I think it can drift up to 16,100, and after that it can go up to 15,300 as per my Fibonacci calculations. And my view will be changed only if Nifty close above 17,400. I know it's a quite big and quite heavy range, but I cannot do anything. Continuously lower tops, lower bottoms are getting created, and if it will break the 16,800 again, I'm going to create a new fresh low as we have done now. So tone is overall bearish for now, and below 16,600 hopefully I will square off some of my holdings as well. So it's my personal opinion, and I am fully bearish basically on index Nifty. Bank Nifty I don't track that one because I don't trade a lot in Bank Nifty. Precisely I trade in Nifty very much, and I posted the chart as well on my Twitter. So if anyone have the reference, so they can go and see there. So this is my view for index. It is quite completely bearish. Below 16,600, full on bearish. Every rise in a selling opportunity for me up to 17,400 Nifty. Thank you. Yes, Harshbhai is there. Harshbhai, your views on the indices and Okay. So I'm bearish. I have been reiterating that unless we close above the short-term moving average, I'm not interested in buying. Maybe I may not short early, but definitely I'm not interested in buying. So my view is bearish only, and I'm looking for, say, uh, in short term, maybe 16,400, we might get some support bounce back. But overall, if you ask me, unless and until we go above 16,840, 16,900, I'll be. Yeah, Amit, bhai, you want to speak something? You want to say something? You mentioned the short-term moving average. Which short-term moving average? Because there are so many. Okay, yeah. So short-term moving average is, and which time frame? And which time frame? Yeah. On a daily chart, 13-day moving average. So
a few days back the value was around 17,400. Then it reduced to 17,300. Now it is at currently it is at 17,129. So precisely 2 days high, about 2 days high. Um, that's the short-term moving average I track. So uh, the value of course the market is going down, so value has reduced. So unless and until we go above that, I'm definitely not interested in going long. I may cut my short, but not go long. So current value stand at 17,129. So precisely about 2 days high. Uh, on downside, um, there might be supports near 16,400, where I might like to cut short, maybe or maybe reduce short position. But I will be looking to sell only unless and until we go above 16,840, 16,900. I will be looking to sell every rally. And on a broader perspective, I'm also looking for something below 16,000, maybe 15,700, 15,500. Bank Nifty, I don't trade much, but yes, my view is bearish only unless and until we go above, say, 36,100, 36,200 zone. My view will be bearish for say 33,000. Immediate would be near 34,000. Below that, maybe 33,000 up to 33,000 or lower. Okay, thank you, Overall, Harsh bhai. bearish view. Chirag bhai, your views on the market and एक any second. levels you want to buy? Amit, if you are done, I can remove I'll you. come back after 15-20 minutes. I'm just on a chat with someone, so you can take some other speaker. So Amit, till that time, I can remove you, if you don't mind, please. So I can add other people. Yes, please. And if you have anything to say, just send me a request and I'll add you back. Yes, Okay? sure. Harsh, any stocks you are looking into? Stock specific, I'm currently like metal stock. I'm looking like weak Vedanta. It looks weak. Turnaround, head and shoulders breakdown as well. So unless and until it goes above 400, I will not be able to. I mean, I would cut my shots. I'm looking for something 360, 350 zone. Um, Rest, not no stock specific trade yet. RBL Bank I was tracking, but currently I don't have trade. Okay, fine. Kirit sir, your views on the market and if you have any levels or any stock recommendation, please go ahead. Sure. First of all, I do not know wish I knew where the market will go. Point number two is I've been hearing that everybody wants to be short. They will only buy about a particular level. I have a question to the ones who want to be short. If you go short at 16,800 and let's say the buy signal, the reversal signal is 17,200 or 17,100. Guys, I will be busy on a call, so I'll be joining back 10 minutes. No problem. Can I continue? कि मैं कॉल आ Yes, रहा है sir, मैं 10 मिनट please में go वापस ahead. ज्वाइन बैक करता हूँ हाँ टिल देन यू टेक Amit, it is okay. Yes. Kirit bhai, please go ahead. Yeah. अगर आप 16,800 में बेचते हो 17,100 17,200 जो भी is a reversal signal, will they hold on for a 300 point stop loss? I don't know where the market will go, and nobody knows where the market will go. It could jolly well go down to 14,000. It could also go down to 7. Yeah, I think somebody was asking me a question. Yeah. Should I answer your question? Yeah, please. No, Harsh bhai, let Kirit sir speak. Then you can. Yeah. Actually, yeah. Sorry. So then it's perfectly okay. So the question is, we all have levels or whatever one follows. Do we adhere to those levels? Trends take time to develop. Trends take time to turn. And pertaining to where it will go is, I'll go with the flow. The trend is down, obviously, which even I agree.
बट बाजार कभी बोल के पलटता नहीं है, वो डसता है सिर्फ. Who would have thought today the thing would have happened? At 10 o'clock, he makes a statement that I'm going to come and make a statement at 2 p.m. अब ठीक है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अब जो भी रीजन आप दे सकते हैं. Did anybody at that point of time know that the market will go down 300 points? And even if it has gone 300 points, my second question is, मान लो कल 2 पॉइंट ऊपर आता है, अगर जिसने शॉर्ट किया, will he hold on to his short? That's my question. Yeah, trend on. You can go ahead. You are asking question. No. Actually, I will answer your question. I am a short-term trader, so I don't trade position. So for me, if I'm going short at 16,800 and we are already down 200 points, so of course I would like to trail my stop loss, and if it goes above 16,800, 840, I would exit. I might take another shot if the risk reward favors again market goes down. That is another thing. I won't wait until it goes above 17,100. I will wait to go long until that time, but I won't hold a losing short position. I can take stop loss and I will enter again if the risk reward permits me, and if the setup is there, then I will again create short. Taking a stop loss does not hurt, definitely. Yeah. Uh, Can I ask you another and question? How do we know the risk reward is favoring? So basically, I trade 1:3 risk reward. So depending upon whatever setup, of course, you get some targets based on the setup. The target may come, may not come. You may get more also. But at least you have some proven track record of the setup, and you get some targets based on that. And you have your stop loss though. So if that risk reward is favorable, you can go short. I mean, so I consider Harsh bhai, 1:2 I is a risk just reward. want no, I just want to interrupt. Yeah, actually, we all know you are a pro trader or a long term. But अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा तो वो थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करके समझाओगे तो अच्छा होगा. या ऐसा कोई भी लेवल देके कि मतलब आपका ट्रेड सेटअप कैसा रहता है, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. That's what my point is. Okay. So uh, today we have a bear flag breakdown below say 17,000. So provided if you want to go short uh, with this stop loss of 17,100, you know that maybe 16,800 is the probable support where it might stop, or maybe it might reverse. Okay, so the breakdown level was around 17,020 zone, 17,015 20. So if you create a short with the stop loss say 17,100, which was opening point at 17,020, and you get 16,800, it's fair enough, a good risk reward. What if it would have gone 200 points above? Sorry. What if it would have gone 200 points above, 150 points above? Then you have to trail your stop loss, right? You take your stop loss. That's fine. No, but if you say 17,020, let's say the trade goes 150 points against you, then what is one? No, your stop loss is 17,100, right? Once it goes above that, then you are not concerned. Mm-hmm. Okay. Fair enough. Yeah. Yeah, thank you. Vishal bhai has joined. Vishal bhai, your views on the market and any specific levels or any specific stocks you want to talk about, please go ahead. Yeah, good evening everyone. So हिमांशु भाई, we have been consistently मंडे से ही हम लोग शॉर्ट में ही बैठे हुए हैं निफ्टी में. आज क्लोजिंग पे हमने अपना निफ्टी को शॉर्ट को क्लोज करके we went long with a stop loss of 522 on Nifty. I see some sort of pullback coming in because majorly whatever the rate hikes जो है Fed का भी है, I believe everything is discounted currently in the markets. And you also look at it from a perspective that we have almost corrected from the day HDFC merger news came from 18,200 odd levels, 18,200, 300 odd levels. We have already corrected to 16,700 levels.
Now that's almost 7-8% of correction. It's a one-sided correction. So I believe that there could be some sort of pullback which will be coming in. I may go wrong, absolutely go wrong. बट यहाँ पे मेरे को एक बार के लिए ओवरऑल फॉर मी द मार्केट्स आर द ब्रॉडर ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड ओनली बट एक बार के लिए थोड़ा सा पुल बैक लगता है. अब ये वो पुल बैक कहाँ तक आता है आई डोंट नो व्हाट विल बी विच सेक्टर्स वुड बी taking the rally on the upside. I have no idea right now, but index I have taken a bet going on the long side with the stops of 520. हाँ जी बोलिए सर. सर वो मैं विशाल भाई बोल रहा था ऊपर का भी लेवल आप बता दिए अगर ऐसा मतलब आपको कहाँ तक लगता है कि सर मेरा we can go to 17,000 पहला लेवल है 960 का 16,960 960 is my first level. 17,050 is my second level. I don't see Nifty crossing 17,220 odd levels. वो एक मतलब आप ये समझ के चलो एक लक्ष्मण रेखा है. जब तक उस लेवल के नीचे है markets for me are sell on every rise. Now there could be sectorial rotation. कभी pharma weak होएगा, कभी what you call mid cap IT or IT as a sector will go weak. कभी metals will go weak. कभी banking will go weak. Now we have SBI numbers coming up. I don't know when SBI numbers can surprise the market on upside as well. So I mean there are a lot of factors. Bank Nifty for that matter has been underperformer for quite some time. But देखो let's wait and watch how market shape up. And I mean I have all the probability of 100% probability of my view going wrong. Market है सर तो हम तो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं. अगर हमारे लेवल टूट गए तो हम सोचेंगे भी नहीं, हम निकल जाएंगे. अगर हमें सुबह उठ के स्क्रीन खराब लग रहा है, अगर हमको लगता है कि भाई लेवल का हम I will not wait for my levels also. If I see enough and more selling pressure, I will just exit my position. That's what a trader like me does. So I mean I'm happy to re-enter a position at a higher price or at a lower price, but I will not if the broader view is against markets are going against my view, I will exit my position. I will not wait for my stop losses then. That's it. perfectly Vishal भाई point taken. Yes Ranveer bhai please go ahead with your views and yeah Harsh bhai you want to say हिमांशु something शरद I जी don't know Yeah. शरद जी को इनवाइट करिए ना. शरद जी इज अ लिसनर. शरद जी को इनवाइट कर लीजिए. Oh. sorry I didn't शरद सर मुझे दिखा okay invited him. Yeah, Himanshu bhai. So you asked me this top specific, na? So mid-cap IT, I'm looking for Coforge for the downside. If today's low breaks, then probably another maybe 2-3% down. Maybe Coforge. हर्ष भाई perfect हर्ष भाई मेरा आपसे एक सवाल है सर. ये हाँ दो हाँ तीन ब्रॉडर ट्रेंड अगर कोई स्टॉक का डाउन है तो खाली हाँ 2-3% का मंदी क्यों खेलना है? क्यों नहीं आप नहीं दो 10-15% का मंदी खेल सकते हो? I mean look at what Sharad bhai mentioned. Sharad bhai has yeah I been mean continuously talking about Dixon. He's very bearish on Dixon. He's very bearish on India Mart. India Mart corrected almost 6-7%. Dixon has corrected almost 15-17%. yeah Mindtree has corrected almost 20% from the top. From the time. I mean, look at HCL Tech. Post results of HCL Tech is a fantastic stellar set of numbers. Everyone on the street is talking about 1200 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा. What happened to HCL Tech? It is now closer to heading towards 3 digits pretty soon. So I mean 2-3% का what is if the broader trend is down, what is the kick के 2% में निकल जाना है is my question to you. no I'm not saying nikal jana hai. Maybe for tomorrow it might give 3-4% down. Overall it looks like 10% it can go, but are you able to play that? That's the another question. I mean everyone Okay, has different sir, let me ask you a question. आप बोल रहे हो 3% नीचे जा सकते हैं, 3 or 4%. Assume करते हैं you're talking about a 5%. How do you enter the? I mean, I have a simple question for the broader audience. क्यों नहीं आप एक बार बताते हैं कि आपने एक चार्ट भी पोस्ट किया Coforge का. yeah आप कहाँ पे उसको मंदी करेंगे, कहाँ पे आपका लेवल होगा जहाँ आप उसको काटेंगे, या क्या आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा, so that everyone is on a common page over here. yeah. So
क्योंकि क्या है सर, 3-4% अगर आप खेल रहे हो तो आप 2% का या 1% का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो yeah, मतलब obviously. So basically I would just okay, down. So I would place a stop loss above 4150, uh, and below today's low, provided like if we don't get 2% down, we get like within 0.5% range, then it's playable. Otherwise, if we get 2% down, then it becomes different story directly. We don't know where do we open. So if we like open within a so 0.5% suppose range, my next question is, suppose it opens 3% down, for example. then I won't trade. I will wait to get up, Okay. because it's about risk reward. You know, like Fair enough. yeah. Perfectly point taken, Sharid bhai. But you Harish bhai, sorry. said the risk reward that you go for is 1:3. So if it opens, if let's say it opens at 41, you sell at 4,000. Correct? So Okay. your risk reward is in terms of percentage, or what is it? How does it function? In terms of target and stop loss. So my stop loss would be 41450, and my target I'm looking would be around 3900 or lower. Then, so at what rate have you sold? Sorry? At what rate will you sell if your target is 4150? If this target is down 3900, I will sell below 4050. Yeah, so 4050 you sell, 4150 is your stop loss. Correct me if I'm wrong? Yeah, and target below 3900, minimum below 3900. That's the minimum I'm expecting. No, but if we go by 1:3 definition, that is for 100 rupee you raise, you're looking at a 300 I know. 1:2, 1:3. Will you be able to hold the trade? टेंडोनोमिक्स Yeah. ये सब फालतू का बात है, वो छोड़ दो यार। इसके नीचे खराब नहीं, इसके ऊपर ऐसा सौदा नहीं होता है। सौदा होता है एक बार आइडेंटिफाई करो, बेच दो और चुपचाप बैठे रहो, वो सौदा होता है। वो स्टॉप लॉस ये वो सब नहीं चलता है इधर। ये तो रोज विप्सो होएगा। तो आप कितना टाइम घूमोगे? एक लॉट का सौदा करो ना, एक लॉट का सौदा करो और बैठे रहो। एक कुफो और ये 1500 नहीं हो जावे तो मेरा नाम शरद नहीं। सर इतना बड़ा मैं नहीं खेल सकता पर्सनली सर। नहीं, आप खेल ही नहीं सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ ये सब स्टॉप लॉस वगैरह छोड़ दो। अब 1500 नहीं तो 3900 तक तो खेलो एक लॉट। क्यों स्टॉप लॉस लगाना है? और कॉन्फिडेंस नहीं है मत खेलो। विदाउट कॉन्फिडेंस शेयर बाजार में आने का नहीं। ओके किरीट भाई कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है यहाँ, विदाउट कॉन्फिडेंस शेयर बाजार में आने का नहीं। जो ये बात समझ गया, ये करोड़ों वाली बात है। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि जब आप कॉन्फिडेंस कहते हो तो वन ऑल्सो नो द अंकल पॉइंट, या कहाँ गलत हो के काटना है। नहीं, और पैसा हाँ सर, ये टाइम की बात है। जब ट्रेंड ऊपर का था तो ये हर्ष भाई का स्ट्रेटेजी बराबर था। इसके ऊपर काटो करो ये करो। अभी ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी चुपचाप बैठो। बिल्कुल सही शरद भाई। मैंने एक चीज देखी है कि लंबा पैसा बाजार में तब बनता है जब आप लंबे खड़े रहोगे। उसमें बहुत से ये बार भी कि 10 से 6.5 बार आप गलत जाओगे, भाव ऊपर चलेगा। पर जो 4.5 बार होगा आपके फेवर में आएगा, 10 बार ही हारिस अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए भैया।
हाँ किरीट भाई। किरीट सर कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी नहीं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, बिकॉज आई वंस अगेन रिपीट, जो शरद भाई के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज गो एंड डू अ गूगल सर्च। ही इज अ इंडियन मार्केट विजार्ड। लोग इनको सलाम ठोकते हैं। He's अरे got an नहीं भाई, impeccable track। नहीं शरद भाई, मुझे बोलने दो, यू आर मॉडर्न। जो लोग जानते हैं, he's got an impeccable track record। He's also there on Google। तो अगर वो कह रहे हैं, there is a lot of information that one can gather। हम बहुत सी बातों से इनके नहीं एग्री होंगे कि शरद भाई हमेशा मंदी बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑलवेज राइट। शाम को 7 बजे एक स्पेसेस हो रहा था, where दीपक शिनॉय वाज कंडक्टिंग द स्पेसेस, एंड शरद जी ने कहा था, टिस्को का पहले ही कह दिया था, मार्जिन आर गोइंग टू बी बैड। कल जब रिजल्ट आया, सबको लगा रिजल्ट अच्छे हैं। भाव भगवान छे, भाव ने बता दिया। I think, when we come to spaces, objective is to learn। We all learn। ये हाँ सर। ये जो बोलते हैं ना, मैंने ये किया ना, मैं ये करूंगा ना, वो कोई मतलब नहीं है बॉस। तुम क्या करते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। हाउ डू यू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, हाउ डू यू इम्पार्ट नॉलेज, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आपको मैं बोलता हूँ, कम से कम 20 स्टॉक है, एक एक लॉट आप बेच दीजिएगा। अब आपको इतना पैसा आएगा, कोई हिसाब नहीं है। वो जितने भी हाई प्राइस्ड है सब, ये कोफोर्ज और वो पॉलीकैब ना, पीआई ना, ये ना वो, एक एक लॉट बेच दो, एक एक लॉट, बस सो जाओ। और टाइटन बेच दो, सो जाओ। कुछ नहीं है, हवा का झोंका था, 11 महीने की हवा चली, सब आगे का भूल गए कि 12-13 हजार ही इंडेक्स था। ये 11 महीने में इंडेक्स 18,000 हुआ, वापस 12-13 हजार होएगा 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 होएगा, उस वक्त ले लेना। तो ये जो हवा का झोंका है, उसको भूल जाओ। और विशाल भाई को बहुत लगी है कि पकड़ लिया। क्यों पकड़ा भैया? बेच दो अभी। हाँ, मजाक की बात कर रहा हूँ, मत उल्टा खेल कभी नहीं खेलने का शेयर बाजार में। ऊपर जाते हुए बाजार में ठोकना नहीं, नीचे जाते हुए बाजार में लेना नहीं। एक सिंपल सा रूल है, उसको आप सपोर्ट देना, रेजिस्टेंस देना, वो सब छोड़ दो। एक लगभग ये 16,200 हो जाएगा कल। वो एक बार एक्सपायरी हुआ था 16,247 का या 50 का, 57 का हुआ था तकरीबन फरवरी महीने में। उधर आ जाएगा। तो सर बैंक निफ्टी पे भी कुछ आप अगर बताना चाहें। नहीं, बैंक निफ्टी अपना काम नहीं है भाई। और वो कोई तो स्टॉक भाई, ऐसा जो आपको बहुत ही कमजोर लगता है कि भाई ऐसा नहीं बिल्कुल देखो, ही तो। ये HDFC बैंक है ना, 110% 800 हो जाएगा। मोटा मोटी दो बातें हैं। एक तो 2020 मार्च में जो लो आए थे उसको पकड़ो, और दूसरा लो पकड़ो ये अप्रैल 2021 का। ओके, तो सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स विल टच अप्रैल 2021 लो, and some of the scripts will touch 2020 लो। तो ये लो आना ही है। एंड बिलीव मी, एक सिंपल सा है, अपना जीडीपी से ज्यादा मार्केट कैप है, वो कोई भी हालत में टिक नहीं सकता है, कोई भी हालत में टिक नहीं सकता है, उतना मुझको मालूम है। और आप
आपके सामने 11 महीना का ही तेजी है, तो आप सच क्यों मान लेते हो उसको? भूल जाओ उसको, उसका पहले का सोचो। आप लोग अगर भूलोगे नहीं ना 11 महीना, इतना तकलीफ पाओगे। और मेहरबानी करके कुछ लॉन्ग मत कर लेना, सस्ता समझ के पकड़ मत लेना, नहीं तो आप पकड़े ही रह जाओगे। That's all. Thank you, sir. Thank you. Ranvijay bhai, if you want to add something, your views. सर बड़ों बड़ों ने बोल लिया है, मेरे तो काफी आज एसएल हुए। सो मैं क्या ही बताऊं, आज मेरे बहुत एसएल हुए। जिस पे भी मैं लॉन्ग गया था, मैं अभी सिर्फ एक पावर ग्रिड पे बैठा हुआ हूँ और आईटीसी पे बैठा हुआ हूँ लॉन्ग में। बाकी मोस्टली कुछ जगह मैंने जहाँ भी ट्रेल कर रखा था मेरे एसएल हुए। सो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ कि इतना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं 200 EMA के हिसाब से चल रहा था। मैं लॉन्ग भी था, इंडेक्स में भी लॉन्ग था, थोड़ा बहुत लॉन्ग था, लेकिन लॉन्ग था। सो वो टूटे हैं। सो लेट्स सी बिकॉज सी एक मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं एक दिन के ब्रेक को भी मतलब ऐसे ठीक है, ब्रेक हुआ है नो डाउट, हमारा EMA वगैरह सब ब्रेक हुआ है, 200 EMA वगैरह नी जर्क रिएक्शन भी था। सो आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व टुमारो कि क्या रहता है। मैं खाली बैठूं, चाहे एक्सपायरी है, वैसे भी मैं इसको बहुत मतलब ज़्यादा नहीं प्ले करता हूँ एक्सपायरी को। सो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि कल के क्या रिएक्शन होते हैं, क्योंकि एक दो दिन का जब अगर उसके नीचे रहता है देन इट बिकम्स अ प्रीटी डिसेंट प्लेस। बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग वहाँ से बैठे होंगे। सो जिसका जो पॉइंट आएगा वो निकलना चाहेगा। कल में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नो डाउट सेल ऑन राइज है। जितने अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे उतना वो सारे ठुकते जाएंगे अभी। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तो ये सर अमित सर। Now you finish, then I'll speak. हाँ, सो अभी अगर कल फॉर्चुनेटली और अगर रिटेन कर लेता है ऊपर का थोड़ा सा लेवल, so then I'll wait for some time to even long or short. But I don't easily short or I don't easily go long. Then if I'm in profit, then I'll try to maintain कि मैं उसमें थोड़ा बहुत तो लेके जाऊं। So that is why मेरे कुछ लॉन्ग्स थे, बहुत नीचे से लॉन्ग्स थे कुछ जगह से, तो मैंने वो आज क्लोज करे क्योंकि मेरे ट्रेलिंग एसएल हिट हुए। ठीक है, कल अगर मार्केट ऊपर चल जाता है, वो स्टॉक्स ठीक हो जाते हैं, मे बी शायद से मैं अपने लॉन्ग्स ले लूंगा। लेकिन कल नहीं जाता है तो मैं वेट करूंगा, मैं फिर उन पे शॉर्ट्स भी जाऊंगा। जो जिनको मैं उठाए हैं वो गिरेंगे भी, लेकिन मैं एक दिन के उसमें नीचर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा जल्दी से पर्सनली ओपिनियन नहीं बना पाता, या मैं बहुत जल्दी से उसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब मैं बहुत जल्दी से शिफ्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत फास्ट शिफ्टिंग नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस मैं कुछ ऑप्शंस खेल रहा हूँ। वो छोटे वो ट्रेड्स होंगे, छोटे ट्रेड्स होंगे, बट जो पोजिशनल खेल रहे हैं उसमें मैं इतने इजीली जल्दी से व्यूज नहीं चेंज कर लेता हूँ। सो मैं कल को मार्केट देखना चाहूँगा कैसा रहेगा कल का। और स्पेसिफिकली कल थोड़ा एक्सपायरी है, तो क्या होता है कि जिस भी साइड जाएगा उस साइड भी वो 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। सो कल और परसों देख के फिर मैं अपने आराम से वीकेंड पे बैठ के और थोड़े से देख के फिर व्यूज बनाऊंगा। और अगर नीचे है मार्केट तो ऑब्वियसली शॉर्ट करना है, ऊपर जाता लगेगा तो उसको लॉन्ग कर लेंगे, वापस से घुस जाएंगे जो लॉन्ग्स थे उनमें। दैट्स इट सर, कंटिन्यू। अमित सर आप Amit, go ahead. Yeah, just a second. I have just opened the data page. मैं एक सेकंड में डेटा का बताता हूँ, डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, एक सेकंड में डेटा का बताता हूँ। ओके, अगर हम FII क्लाइंट और प्रो का डेटा देखेंगे, FII have almost double their shots, same time
pro and client category have, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, कोई नहीं कुछ बोल रहा। हाँ, ओके। तो FII have almost double their shots in index I'm talking about, I'm not talking about stock specific। और जो डेटा है सबके लिए, मेरे लिए कोई स्पेशल डेटा नहीं आया है। तो FII ने शॉट डबल कर दिया है। सेम टाइम क्लाइंट्स और प्रो ने मिलके अपने लॉन्ग्स को ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए हैं। नाउ अब जो भी मार्केट ड्राइव करेगा यहाँ से हमें उसको पकड़ना है। प्लस कल या परसों में मार्केट एक अच्छा रिबाउंड देगा। कल एक्सपायरी जैसा रणविजय बोल रहा था, हो सकता है कल इनडिसिसिव मार्केट रह सकता है। इनडिसिसिव मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बट पोस्ट टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट टू लुकिंग इनटू बाइंग थिंग्स रादर देन सेलिंग थिंग्स, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। मार्केट इज गेटिंग इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी, बट ओवरसोल्ड का ये मतलब नहीं कि ओवरसोल्ड कैन नॉट रिमेन ओवरसोल्ड। एक सिंपल थ्योरी बोली जाती है, ओवरसोल्ड कैन रिमेन ओवरसोल्ड टिल यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। मतलब ओवरसोल्ड मार्केट इतना ओवरसोल्ड रह सकता है जब तक आपकी जेब में पैसा है। मतलब आप बेचते जाओगे या खरीदते जाओगे, बट लास्ट में एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। FII के पास भर के पैसा पड़ा है, ठीक है। आज जो रेट इंक्रीज हुआ है उसका एक फैक्टर ये भी पकड़ के चलो कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल चल रहा था, जो सिंपल, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी स्कूल की तो उसमें भी सिखाया जाता था कि भाई वो पैसा वहां से उधार लेके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से 50 पैसे पे उधार लेके आ रहा है, 50 पैसे पे वो पैसे उधार लेके आ रहा है अमेरिका से, कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे 1.50 रुपीज गिरा, और यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं G6 बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में हम उसको कुछ 6% दे रहे हैं। प्लस वो रिस्क कैरी कर रहा है कंट्री टू कंट्री की रिस्क, क्योंकि FII have 100 रुपीज इन पॉकेट, तो 100 तो इंडिया में एलोकेट नहीं कर रहा है, वो कुछ यहाँ पे एलोकेट करेगा, कुछ चाइना करेगा, कुछ अलग अलग कंट्रीज में एलोकेट करेगा। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वो खेलने जब जा रहा है, तो उसके कारण भी है ना जो रेट इंक्रीज हुआ है उससे वापस आज फेड पावेल साहब क्या बोलेंगे हमें से किसी को नहीं पता। उनका 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट इज नॉट अ मैटर ऑफ मतलब कंसर्न। द मैटर ऑफ कंसर्न वुड बी व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्री गिव्स। मतलब वो एकदम हॉकिश दे देंगे कि भाई मुझे तो एकदम अग्रेसिवली रेट इंक्रीज करना है, साल का 7 रेट इंक्रीज नहीं करके मुझे 8 रेट इंक्रीज करना है, बट क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर इतना बड़ा हो गया तो इसके लिए कहीं ना कहीं रेट इंक्रीज साइकिल चालू हो चुका है। जो बेसिक इकोनॉमिक्स मैंने 18 साल बाजार में रह के सीखी वो बता रहा हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे इकोनॉमी का ई भी आता है, ठीक है, भले ही सीए हूँ बाय डिग्री, बट प्रैक्टिस नहीं करता तो मुझे सारी चीजें नहीं आती। तो बेसिक जो मार्केट मुझे बोल रहा है, जो स्ट्रक्चर बोल रहा है, ये स्ट्रक्चर इज वेरी वीक, मार्केट नीचे जा सकता है, बट आई विल स्टार्ट लुकिंग इनटू बाइंग अपॉर्चुनिटीज rather than selling opportunities, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है ना, सेलिंग का बढ़ जाएगा, मतलब सेलिंग में आपका रिस्क बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा compared to if I play for a bounce of next 400-500 points. I'm not expecting anything above say 16,800, 16,900. Say in a day or two or say by Monday. मैं भी उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी, बट जो बाउंस आएगा ना फ्यूरोशियस बाउंस हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन का भी डेटा जो बोल रहा था अभिषेक कुछ देर पहले बोल के गया था, और आप ऑप्शन का डेटा भी चेक करोगे ना तो कुछ जो 17,000 पे राइटर खड़ा था फुट राइटर सॉरी, उसने भी पूरा पोजीशन अनवाइंड नहीं किया, जबकि उसको पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए था। सेम 16,900 16,800 का भी यही सिनेरियो बन रहा है ऑन ऑप्शन चार्ट ऑफ कॉल्स, कि भैया उसने अनवाइंड नहीं किया, वरना उसको तो आज तक अनवाइंड करके, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, वो आज भी खड़ा है, गॉड नोस व्हाई। मैं एक सिंपल चेक कर रहा था डेटा, 17,500 का 4 रुपए पे कॉल चल रहा है। अब भाई कल 17,400 जा सकता है क्या? 17,500 17,500 कॉल इज ट्रेडिंग एट 4 रुपीज, मतलब गॉड नोस वो कौन बायर है जो एक्सपेक्ट करके बैठा है कि 4 रुपए भी जा सकता है, मतलब 4 रुपीज जा सकता है। कल सुबह अगर वो मुझे 3 रुपया भी दिखा ना, मैं पक्का बेच के आ जाऊंगा, आई वोंट इवन केयर, रेस्ट इज माय लक, बट वो मैं 3 रुपए का ऑप्शन भी बेच दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे रिस्क नहीं है। मैं सामने अगर वो ऊपर जाएगा तो मैं कुछ खरीद के बैठ जाऊंगा। तो अभी जो डेटा क्रिएट हो रहा है ना, उस डेटा के हिसाब से कल भी जो डेटा था, ये तो आज अचानक से कुछ न्यूज आया, इस कारण से हमने ये नीजक रिएक्शन देखा। बाकी 1 या 2 दिन में मार्केट में बॉटम बनाएगा बाउंस के लिए, मतलब वो बॉटम वैसा नहीं बना है, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है। उस बाउंस के बाद क्या आता है वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कंटिन्यूस वापस सेलिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, FII डबल शॉर्ट हो चुका है। अगर वो नीचे के लेवल पे शॉर्ट करते चल रहा है, वो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट नहीं था, वो ऊपर के लेवल पे लॉन्ग था। जब मैं अंकित थे, अंकित ने भी यही चीज बोली थी, अब FII लॉन्ग आ चुका है। FII ऐसा है जो पोजीशन बदल देता है। रिटेल मतलब जो क्लाइंट पोजीशन है, क्लाइंट मतलब रिटेल, चाहे अपने जैसे लोग, वो नीचे आज भी खरीद रहे हैं, मतलब भगवान मालिक है वो कहाँ से पैसे लाते हैं
बैंक से चोरी करते हैं या बैंक उनको लोन दे देता है, क्या करते हैं, गॉड ओनली नोज. And since LIC IPO is also there, so that might suck out some kind of liquidity. Now, exactly what will happen, it is beyond us to decipher. It is beyond our limited imaginations, which we can do. तो मेरे हिसाब से एक या दो दिन में शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा. आर्ली पे अगर कंफर्म होगा ना, आर्ली पे कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ. आर्ली पे अगर एक हायर हाई हायर लो बना दे, हायर हाई हायर लो बना दे, तो जो भी लो बना उसका एक स्टॉप लॉस लेके प्लस माइनस 50 पॉइंट्स पकड़ के चलना. एंड दैट शुड हैपन पोस्ट 2 पीएम. पोस्ट 2 पीएम, उसके पहले नहीं. मतलब 2 बजे तक आपको अगर इंतजार भी करना पड़े, 2 पीएम तक आपको वेट भी करना पड़े, तो वेट कर लेना. हो सकता है अच्छा सेटअप मिलेगा जहाँ रिस्क कम होगी और रिवॉर्ड हो सकता है बढ़ जाए. Yes, now it is sale on rise market. Absolutely, I agree with Harsh what Harsh was saying. I couldn't listen to him because I was getting a call. But again, the same factor is कि अगर कहीं दिखेगा अर्ली में मुझे 5 मिनट और 15 मिनट पे नहीं, तो I'll look for a buying opportunity. Yes, Kirit sir, I know you want to ask me something. I'll just like to share one data. So we do a lot of statistical analysis, but take it with a pinch of salt. जब भी ऐसे wide range days आते हैं where the sell-offs are big or where the buyout is very big, usually the next day there is a trend reversal. Whether the trend will last or it will not last is the question mark. So there's a very famous adage that goes in the market, the obvious in the market will obviously not work. What is known to everybody will seldom work. आज सबको बेचना था. It was an easy ride. The ones who were lucky, they sold and they must have made money. कल क्या करेगा? As I said at the start itself, I do not know. But statistically, I have seen जब भी ये बड़े दिन आते हैं, so to give you an example, अगर कैश निफ्टी का 16,623 का लो टूट के वो अगर पहले आधे घंटे में उसके नीचे जाके उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो टू मेक इट मोर सिंपलर, 16,623 के नीचे समझो 16,580 जाता है. Kirit sir, if you will use all these numbers in English now, because we have so many people who don't understand Hindi. That is why. Only request, sir. No problem. So let's say today's low is 16,625 in cash. Let's say we go in the first 45 minutes below 16,625 cash nifty. Let's say we go 50 points lower. Let's say we go to 16,575. And within the first 45 minutes, if it bounces back from there and trades above the low of today's low of 16,625, there is a very high inverted comma probability that the market will reverse. वो करेगा eventually. What it does is anybody's guess. So statistically, we have tested on days when the Nifty range expands, there is a very high probability that it usually reverses. Because the obvious will be everybody wants to sell. The momentum is such that आज जिस रफ्तार से गिरा है किसी को खरीदना नहीं है. And please do not forget one thing. This is a business where less than 1% people make money and more than 99% lose money in the long run. I know many of the listeners will not agree to me, but statistical data गलत नहीं कहता है. Nitin Kamath came and made the statement. He was trolled big time. ये मत भूलना, he has about 1/3 of the market share. So these are some of the tricks of the, because अगर सभी जन एक दिशा में होंगे, then the question is who will lose money. And the obvious trade even I know is on the short side. हो सकता है कल और 300 पॉइंट नीचे जाए. I'm not ruling it out. But the question is, why do we want to be right? अक्सर, people think that being right is the sure shot way to succeed in the market. It's not that. So let's say if you buy a stock at 100, sell at 102, you're Mr. Right. But what if the stock goes to 120? So try, this is how you need, and I'm also at the same time not saying be contrary. Let's say it opens 200 points down. Then probably it could be a lower. So you have to see what is the bounce it's going to take. In the evening spaces where Deepak Shinawatra, I raised the same question. I said globally markets are down big time, but we aren't down.
And for your information, inflation rate hike was always in the offing. वो आना ही था. Probably I'm not an economist. I don't understand banking numbers well. I understand price action. So go with an open mind, see what the market wants to tell you, and go with the flow. But before you take any trade, please calculate the amount that you will lose. किसी मेरे बोलने या मिस्टर अमित भाई के बोलने पे या शरद भाई के बोलने पे don't blindly follow it. We all go wrong. We go more wrong than we go right. So that will make you wonder, if we have more losing trade, how do we make money? The simple reason is we cut our losses short, we let our profits run. The moment you go with the fixed opinion, you're trying to enforce your view on the market. That's my only thing that I want to say. Over to you, Amit. Thank you. Sir, one question to you. If say 16,625 gets taken out on the higher side, so in that case, our stop loss should be below the day's low, less say 30-40 points. Yeah. Secondly, one more question I would like. It's a very good question, Amit, you asked me. Please do not keep your stop losses at days high and days low. The smart money knows कि यहाँ stop loss रखा है. It is an obvious point. If you want to keep a day's low, तो मैं बोलूँगा day low के 5 रुपए ऊपर रखो. Because the day low is obviously going to be taken off. Why do you want to keep at day's low? Keep it 5-10 rupees, 5-7 rupees higher. So just keep about 20-30 points away. The chances of not getting stopped out will be higher. I'm not saying you won't get stopped out, but the probability will work in your favor in such cases. Sir, I'll add a point over here. And don't keep your stop losses as a round figure, as say 17,400 or 16,400. Yes, never ever keep it at an odd number. 15-20 odd number. Yeah, like something like what I keep my stop losses. Let's say if it makes a low of 16,585, I will keep at 16,573.15. Something like that. Odd numbers usually get taken, round numbers usually get taken out. And if the fall is very ferocious in the morning, I can tell you there's a high probability it will bounce back. I am not asking you to go long. Observe the market. There is a very old adage in the market, पहले 15 मिनट अनाड़ी के, आखिर के 15 मिनट खिलाड़ी के. मेक्सिको में ये कहते हैं, amateurs open the market, professionals close the market. Chicago exchange में. So these things have meaning. Just because thing has happened, the world is going to end the world. Think of it this way, that if rate hikes are bad, I mean, I'm not the right person to comment. Presuming rate hikes are bad. So mutual funds are holding 1,000 and 1,000 lakh crores of holding. We talk about बेचना चाहिए. Why aren't they selling? If FIIs are selling, why are DIs buying? Every person has a different view. If everybody thought in the same direction, तो बाजार या तो upper circuit लगता है, lower circuit लगता है, or any stock for that matter. And most importantly, do your own research. You can never ever get rich at the cost of somebody else's knowledge. That's what Rakhi Jhunjhunwala says very openly. Amit ji का stop loss 200 point होगा, just because you try to come tail quote Amit ji, वो 200 point झेल सकते हैं. क्या do you have the personality to withstand the 200 points? No. Somebody else may have a stop loss of 50 points. So everybody has their own set of studies. You go with your belief, with your process. So tomorrow when you enter a trade, have a game plan ready, see what the market is telling you, and act accordingly. And sir, as Vishal also quotes every time, if the trade is not going in your favor, in say for next 1 hour, probably that trade won't work even for the whole day. Right, Vishal? We and you there? Yes, absolutely correct. Absolutely correct. भाई अगर ट्रेड आपके फेवर में 1 घंटे में भी नहीं गया, तो आप पूरे दिन उस ट्रेड को लेके बैठे रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, अब ट्रेड फेवर में जाएगा, ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना मेरे फेवर में जा रहा है,
तो हम बैठ के ना सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं चल रहा छोड़ दो ना, जहाँ उसको बात नहीं। भगवान का नाम लिया वहां सर समझ मैं लेना और ट्रेन क्या गलत बोलूं, जाने वाला है। सर मैं और क्या बोलूं। हाँ सर ये पक्की जहाँ बात पे है। बोलो सर, किरीट सर बोलिए सर। नो नो आई एम सेइंग जहाँ भगवान का नाम लिया या जहाँ आपने किसी को पूछा क्या लगता है, वो काम करने से पहले ट्रेन को काट देना। एब्सोल्युटली सर, मैं भी वही बोलने वाला था कि द मोमेंट यू आर सर्चिंग फॉर आंसर्स, आप कोई कि क्या रीजन, सर्चिंग फॉर रीजन, या चार लोगों को पूछ रहे क्या लगता है, मतलब आप तो गलत हो गए सौदे में, तभी तो आप सवाल देख रहे हो, 10 लोगों से जवाब मांग रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन एंड देन सर्च फॉर आंसर्स। See, exiting a position means that it's not your wrong analysis. Probably the timing was wrong, probably the entry point was wrong, and probably you didn't had a trade plan. Okay, if it doesn't work, say for next 1 hour, what will I do? And probably you had traded, which is the time when market generally doesn't work. That's why we always say watch for the first 15 minutes, mark the high low. If possible, make it to 30 minutes. If better possible, make it to an hourly chart. At least draw two lines, the day's high and the day's low. See in which direction market is working and trade in that direction. Because chances are high that the market might move in the same direction. Chances are high. No guarantees, huh? Again, we always say this. If there was any guarantee in this market, nobody would have put in their money in bank FDs or post office schemes. गारंटी कुछ भी नहीं है, तो गारंटी हमारे पास भी नहीं है। मेरे पिताजी मेरी गारंटी नहीं लेंगे, विशाल, हिमांशु, हर्ष भाई, किरीट सर मेरी गारंटी नहीं लेंगे। भाई मार्केट है, मार्केट में कोई किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता। एज सिंपल एज दैट। So we have Praveen over here. Praveen, you want to add something or you have a query? Because you are waiting for quite a long time. Yeah, sir. Like since all the legendary are here, so I want to just views on Dixon Technology. Can you? Hello. Yes, you are audible, Praveen ji. Please complete your just views on Dixon Technology. I think Vishal is tracking. Vishal take over. He is holding a sizable position. He is big time short on Dixon. Vishal ji, can you share your views? सर क्यों मजाक कर रहे हो सर? Anyway, but I mean, I see much more correction in Dixon. I mean, for me, Dixon is a pure sell on every rallies. We are almost 15% in the money in our trade, so I don't see Dixon crossing 42-4300 levels anytime soon, and it can probably correct another 20-25% from these levels, and the fall can be pretty quick as well. I mean, don't be surprised. One of these days, if the market starts correcting badly, we may see a lot of these stocks having accidents happening in these stocks, like what happened in Mindtree the other day. Probably Birla Soft corrected. Intellect is another counter which is very weak. So a lot of these counters where the liquidity is pretty less. I mean, persistent for that matter, all these counters are pretty weak, and I've been like Sharad ji, no more than me. I mean, I was obviously had a negative view, but जब Sharad ji ने बोला, he's also very negative and bearish on mid cap IT, the confidence actually doubled up. So for me, I mean, I'm not a buyer in any of the IT stocks as of now. And we can see a lot of correction coming in these stocks. Don't be even surprised if the market's correct, we may see a 30-40% correction from these levels. These companies are highly overvalued on the price to earning market capitalization basis. So इतना high valuations sustain नहीं करेगा. So that's it. Okay. Thank you, Vishal. Pleasure, sir. Anyone else? They're expecting some requests. Thank you, sir. Yeah, Jagveer, Wasim. Yeah, Wasim, you can go ahead with your सर आई हैव क्वेश्चन। मैंने सर अडानी विल्मर 355 पे लिया है, मैं क्या करूं उसमें? अभी होल्ड करूं या सेल करूं? सर
बैठे रहिए ना स्टॉक में। हाँ, मतलब सर ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना, जी सर, जी डबल हो जी गया है सर, ना, जी सर, सर 2.5 गुना होगा मेरे हिसाब से, 2.5 गुना। 2.5 गुना हो गया। तो थोड़ा क्वांटिटी बेच दो, अपना कॉस्ट फ्री करके बैठे रहो, मजे करो। वसीम भाई वो क्वांटिटी क्या है आपकी, वो पहले वो बता। कुछ 1800 शेयर है। अरे वसीम भाई 900 अभी बुक कर लो आप 50%, और 50% अपने पास रख के भूल जाओ उसको। और सर मेरे कुछ शेयर्स है जिनमें लॉस है 3.5 लाख का, अभी उनमें मैं क्या करूं सर? आपको सारे शेयर का नाम बताइए वसीम भाई। एक मिनट वसीम भाई, एक आध चीज बोलता हूँ आपको। अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 स्टॉक चलेंगे। आपको एक ही स्टॉक चाहिए होता है अपने पोर्टफोलियो में, तो सबका लॉस रिकवर करके इतना बड़ा पैसा बना के दे जाए। जैसे आपके पास अडानी विल्मार है, जी सर, ठीक जी है, सर, वो आज इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो 3.5 लाख तो वो कहीं कवर ही करके बैठा है ना पूरा। जी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आप ओवरऑल लेवल पे देखो। आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे कि मेरा ये स्टॉक लॉस दे रहा है, वो स्टॉक लॉस दे रहा है, बट एक स्टॉक मुझे इतना हाई प्रॉफिट दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जो स्टॉक बहुत हैवी लॉस दे रहा है ना, हमारा आदत होता है हम प्रॉफिटेबल स्टॉक काट देते हैं, और लॉस मेकिंग स्टॉक है ना हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे। सबसे पहले जो कचरा स्टॉक है, जो रिटर्न ही नहीं दे रहे, जो 6 महीने में नहीं चले, और मार्केट कंडीशन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले 1 2 3 महीने इंप्रूव होने वाले हैं कुछ, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है, तो पहले तो वो काट दो, ठीक है। फिर वापस कुछ अडानी विल्मार जैसा ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट करो, सर। या अभी फिर मेरे स्टॉक के नाम बता दो। अमित भाई सर ने यहाँ मेरे पे पास, एक मैं हाँ 1 साल से सर मार्केट में हूँ, बिल्कुल मार्केट में मैं नया हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास जैसे पड़ा है वेबसॉल है, और क्या है वो, एनसीसी है मेरे पास, विप्रो है मेरे पास, ट्राइडेंट है, ट्राइजन टेक्नोलॉजीज है। सर ये वेब सोलर किसके बोलने पे लिया आपने? 130-40 पे लिया होगा या 180 पे लिया होगा? इसके नीचे 148, तो आप 148। हाँ जी, हाँ जी। तो वो टाइम पे तो लोग निकल रहे थे, आप एंटर कर रहे थे। एनीवे सी इज द थॉट प्रोसेस इज सिंपल। आप एक चीज समझ के चलिए कि अगर आपका कोई भी स्टॉक जो है 10% आपके अनफेवर में चला जाए ट्रेडिंग के लिए या डिलीवरी में है, तो आप समझ के चलिए कि उसको उस भाव से 12-13% ऊपर आना पड़ेगा आपके भाव पे आने के लिए। जी जी नाउ नाउ एक चीज समझिए, जो चीज नीचे जाती ग्रेविटी कमिंग डाउन, द फोर्स विद व्हिच अ स्टॉक और एनीथिंग कम्स डाउन इज मच फास्टर। और आप सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो जल्दी आप उतर सकते हैं, आपको सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है तो आपको टाइम लगता है, थकान होती है। तो दैट इज हाउ द स्टॉक्स आल्सो मूव। अगर आप कोई स्टॉक के अंदर लेके बैठे रहेंगे एंड यू विल कीप वेटिंग, आप आपके भाव आने के लिए तो वो कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि आपने स्टॉक ले लिया और उसके जी बाद में जी आपके अनफेवर चला गया और फिर आप 5 साल उसका वेट कर रहे हैं। आपने आपका भाव आ गया, भाव आने के बाद में आपने एग्जिट कर दिया उसको। दैट इज नॉट द रीजन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन द पर्टिकुलर स्टॉक, राइट? और जी वो 5 साल के अंदर आपके पास में 50 अपॉर्चुनिटी ऐसी आएंगी जो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगी। आप जी वो सर। नहीं ले पाओगे क्योंकि यू हैव लिमिटेड कैपिटल। सो दैट इज वेयर एनी स्टॉक व्हिच गोज इन अनफेवर और आपको घबराहट होने लगी है आफ्टर पॉइंट इन टाइम, माय फिलॉसफी इज सिंपल, आई जस्ट एग्जिट दैट ट्रेड, दैट इज इट। लॉस बुक ओके। करना सर, बाजार में अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको लॉस बुक करना आना चाहिए। प्रॉफिट तो क्या हर कोई बुक कर लेता है, 2-3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। लॉस बुक करना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी लॉस बुक करना सीख जाएगा, he will be able to be in the market and the game for a longer period of time. That is it, sir. यस सर, यू आर राइट। अभी Yes, मैंने Amit, ये you want चीज to नहीं add सीखी है, something? लॉस बुक करना। वसीम भाई एक चीज और ऐड करता है, कुछ ना करो, आपको टेक्निकल नहीं आता चलेगा। आप एक 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे लगा दो, जी ठीक है, डेली बेसिस पर। जिस दिन वो 20 डे का मूविंग एवरेज तोड़ दे, वो स्टॉक से एग्जिट हो जाए। ये आप स्टॉप लॉस पकड़ के चलो मोटा मोटी, ठीक है। ये जी सर। सिंपल चीज है, 20 डे का मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है। स्टॉक 20 डे के नीचे गिरा, छोड़ दो उसको, वापस 20 डे के ऊपर आ जाए, वापस एंट्री कर लो। हमें कोई ये लॉ में नहीं लिखा है, कोई ट्रेडिंग का ऐसा लॉ नहीं बना है कि वापस एंट्री स्टॉक में अलाउड नहीं है। 20 डे के नीचे गया मैं एग्जिट कर दूंगा, 20 डे के ऊपर रहा मैं एंट्री कर लूंगा, इतना सिंपल रख लो। थैंक यू सर। आपको चाहिए तो और छोटा मूविंग एवरेज कर लो, हर जैसे 13 यूज करता है, मैं 7 भी यूज करता हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है। 20 एक अच्छा पीरियड रहेगा जिसमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। 20 डे के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाए 3:25 को वो स्टॉक जाके बेच दो, भाव भी मत देखो, बटन दबाओ निकल जाओ, ठीक ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। और अडानी विल्मर में क्या व्यू है आपका सर, अमित सर? विशाल कैन एड बेटर, because Vishal tracked that stock. I don't track Adani Wilmar.
सर खड़े रहिए, अभी कल ही न्यूज आई है, दे हैव टेकन ओवर कोहिनूर बासमती का ब्रांड भी। अब दे आर नाउ थर्ड लार्जेस्ट ऑन द बासमती पीस एज वेल, राइस के अंदर भी आ गए हैं। जी इट इज जी। अ एग्री कॉन्ग्लोमेरेट, फॉर्च्यून एज अ ब्रांड इज डूइंग प्रीटी गुड, इट इज इनटू ऑयल। देखो सर, सिंपल एक एक चीज सिंपल गणित समझ के चलिए, ये लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, कितना भी इन्फ्लेशन हो जाए, कितनी भी तेजी हो जाए, कितनी भी मंदी हो जाए, 1 लाख की निफ्टी हो जाए कि 1,000 की निफ्टी हो जाए, लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। एंड जी सर। these company Adani Wilmar, companies like Adani Wilmars or Davas of the world, they are into food business or ITC also to a certain extent। तो ये सारी कंपनी जो है, आपको ब्रिटानिया हो गया, कोलगेट हो गया, कोलगेट तो चलो एफएमसीजी में आ जाता है, बट ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ऑल दीज कंपनीज विल गिव यू अ सस्टेनेबल ग्रोथ, और CAGR आपको 10-15% का ग्रोथ देते रहेंगे। तो सर आप इसको लेके भूल जाइए। आई मीन फॉर ओवर नेक्स्ट 10 years you will see a multi-fold return in these stocks। तो जी मतलब don't think कि इतना शरद सर कुछ बोलना चाहते हैं विशाल भाई। नहीं, मेरे को एक सवाल पूछना है कि मैं कल वो कॉल बेचूं या पुट बेचूं निफ्टी का? सर 17,000 के ऊपर के जितने कॉल है बेच दो एक बार के। क्या बोल रहे हो? सर 17,000 के ऊपर के कॉल है, बेच दो। तो वो तो 4 आना 8 आना होएगा। अरे सर पैसा शरद है सर, उसमें। 18,000 का कॉल 3 रुपया चल रहा है, 18,000 का कॉल 3 रुपया चल रहा है। नहीं मैं अभी शाम को बेच के आया हूँ। शरद सर, हाँ, शरद सर, सर अगर पैसा खोना ही है तो क्या सर मार्केट में क्यों काम कर रहे हो? वैसे ही मेरे को चेक लिख के दे दीजिए ना, कॉल पुट बेच के या खरीद के, सर कौन कमाया है इसमें? नहीं, सब लोग बहुत डिस्कस करते हैं, तो आज मैं सोचा मैं भी ट्राई करूं क्या होता है। सर मैंने जवाब दिया ना आपको। विशाल एक सेकंड, सर मैंने आपको जवाब दिया ना, 17,000 के ऊपर के सब कॉल बेच के बैठ जाओ। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं यार। सर तो और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं? आप बोलो, नहीं स्टैम्प पेपर पे लिख के घर भेजूं आपके? नहीं, 17,000 तो बहुत दूर का हुआ ना। मेरे को एक्साइटमेंट चाहिए बाजार में। सर एक्साइटमेंट के लिए आप बाजू में अपने एसएल वर्ल्ड है, नहीं तो आप लोनावाला जा सकते हैं। नहीं, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारी राइड्स है, वो राइड में एक्साइटमेंट लो ना सर। मार्केट में अपन एक्साइटमेंट के लिए नहीं है, मार्केट में अपन एक ही पर्पस के लिए आए सर। आप हमसे ज्यादा जानते हो, पैसा कमाने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए और एडवेंचर के लिए हम बाजार में नहीं आए। नहीं, पर मेरे को एक सवाल है। 16,700 है, तो वो कॉल भेज दूं या पुट भेज दूं? सर कॉल ही बेचना है, कल के लिए कॉल ही बेचना है। ओके। अभी सर वो फेड क्या बोलेगा मुझे नहीं पता, बट अभी मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि वो कुछ भी नया उल्टा सीधा ना बोलेंगे। और कुछ ऐसा पॉजिटिव बोल दिया कि मार्केट ही 17,000 के ऊपर खुला, तो मैं कल आके पक्का स्पेस पे एक्सेप्ट कर लूंगा अपनी मिस्टेक के, भाई मैंने गलत बोला था। अभी तक का मैं बोल रहा हूँ, रात को सर 12:30 बजे। नहीं पर तो रात, अमित भाई, वो लॉस का भरपाई कैसे होगा? अगर किसी ने अरे जीत पर लिया तो लॉस का भरपाई कल क्या खुलेगा? कल क्या खुलेगा विशाल, तुझे गारंटी है? कोई गारंटी से बोल दे यहाँ खुलेगा, तो मैं वो ट्रेड करने को तैयार हूँ। वो हमें नहीं पता ना। नहीं, वो एक्चुअली वो विशाल भाई अमित भाई, वो सौदा तो कल सुबह ही होगा। अभी तो कुछ कॉल पुट बेच भी नहीं सकते। नहीं, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है। 16,700 का कॉल बेचू, 16,700 का पुट बेचू, 16,800 का पुट ले लू, 16,600 का कॉल ले लू। तो ये स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा? सर आप आयरन फ्लाई बना के जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, एक मॉडिफाइड आयरन फ्लाई बना के जा रहे हो, जिसको हम आयरन फ्लाई बोलते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी बना के जा रहे हो। अच्छा, तो आप टोटल प्रीमियम ऐड कर लेना, आपके जेब से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि आप रेंज ही छोटी पकड़ के चल रहे हो, उसमें आपको इन्फ्लो ही होने वाला है। बट वो इन्फ्लो इतना नहीं रहेगा कि मार्केट ने अगर 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया ना, कि वो स्ट्रेटेजी बचा पाएगी आपको। नहीं अमित भाई, मैंने अभी डिसाइड कर लिया है। आज के बाद खाली कॉल पुट ही बेचूंगा बस। सब लोग बेचते, पैसा कमाते, मैं अकेला रह गया। लुखा का सर आप हमारे मजे ले रहे हो सर। सर प्लीज आप हमारे मजे ले रहे हो यहाँ पे। कमाया, हम गए। नहीं सर, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, शरद जी थोड़ा सा इनडायरेक्टली, मतलब ही इज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट शरद जी यहाँ पे एक चीज वार्न करना चाह रहे हैं फॉर द न्यूबीज, कि जो कॉल पुट को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का प्रीमियम बेच के सोचते हैं कि हमने बाजार के अंदर मास्टर हैं, सच काइंड ऑफ फॉल्स कैन wipe away their profit, then can get them into debt for lifetime. So please be very, very clear before you short options and take option shorts trade at the time of events and go overnight. Naked options मत लेके जाइए, कभी भी शॉर्ट करके मत जाइए, बर्बाद हो जाएंगे। वो 2 5 10 रुपए लेने के चक्कर शरद में सर 200 500 शरद सर 1000 रुपए जाएंगे। उसमें एक चीज बोलता हूँ, मंथली 15,500 का कॉल चल रहा, पुट चल रहा है अराउंड 50 रुपीज, 18,000 का कॉल चल रहा है अराउंड 75 रुपीज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अगर ये आप नहीं 17,500 सॉरी 17,500 हम टॉप पकड़ के चल रहे, मंथली की बात कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी, वो करीब करीब हमें है ना 100-125 रुपए देके जाएगा, 100-125 बात, उसको पकड़ के बैठे रहो। आपका व्यू हमें पता है कि एकदम बेरिश है, बट इस महीने लग रहा है एक बार के शायद ना तोड़े, क्योंकि एक बार का कहीं ना कहीं 1-2 दिन में मुझे दिख रहा है सर, पॉसिबल है कि मैं 100% गलत हो सकता हूँ, बट अगर वो रेंज नहीं तोड़ा ना तो 100 रुपया पूरा खाने का है, पूरा महीना है अपने पास अभी, और मार्केट एक दिन और काम करेगा, फिर 2 दिन बंद रहेगा, फिर मंडे को होगा। अगर उसमें 20-25 रुपया भी मिल गया, हमें थीटा का डीके मिल गया, वॉलेटिलिटी गिर गई, वो मिल जाएगा, मतलब जो वेगा इम्पैक्ट चाहिए, तो वो मिलके है ना, अगर 20-25 रुपए भी मिला और आप क्वांटिटी देखेंगे, मुझे पता है 1 लॉट तो बेचने वाले बेचने से रहे, तो उसमें पैसा बन सकता है सर। हाँ तो मैं कल पक्का 1 लॉट ले लेता हूँ सर, बेचना है, लेना नहीं है। तो 15,500 बेचना है, 17,500 बेचना है कॉल। अरे नहीं, बेचने का काम नहीं भाई, मरने उससे अच्छा जहर खा लो, अभी रात को मर जाऊं बेटर है, ऑप्शन नहीं बेचूंगा। सर यही तो रेडी अमित सर यही ट्राई कर रहे थे, और विशाल सर जो बोल रहे थे उसमें पुट बेचना ज्यादा खतरनाक है कॉल बेचने से, फर्स्ट थिंग, क्योंकि गिरती स्पीड से है ओवरनाइट खासकर। सेकंड सर, मतलब ये न्यूबीज के लिए सर, आपको तो हम सिखा नहीं सकते, आपसे तो हम सीखते हैं। सेकेंडली सर, इवेंट ना खेलें, न्यू कमर है तो इवेंट ना खेलें, 2 पैसे कमाने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े लोचे हो सकते हैं। सो इवेंट्स ना खेलें, और कॉल बेचना, मतलब दूर के जो 2-2 5-5 रुपए के पुट बेचना ज्यादा खतरनाक है कंपेरेटिव टू कॉल बेचना। खतरनाक दोनों ही है, मतलब एक धीरे धीरे मरना है, एक ज्यादा तेज मरना है। बट रणविजय 18,000 का कॉल, 18,000 का कॉल आज 2 रुपए 90 पैसे चल रहा है, 2 रुपीज 90 पैसा। मैं लास्ट में है ना बहुत बड़ा क्वांटिटी बेच के आया, कल 18,000 तो निफ्टी नहीं जा रहा ना, कोई पता नहीं क्यों खरीदने बैठा है, मैं बेच के आ गया, जितना क्वांटिटी लगा था स्क्रीन पर मैं सब बेच के आ गया। सर मैं वही कह रहा हूँ, कॉल में फिर भी मैं कॉल के लिए, अरे मैं 18,000 कल 18,000 जाएगा क्या निफ्टी? सर मैं वही कह रहा हूँ, मुझे 1% प्रोबेबिलिटी दिखती है उस चीज की, वो होगा तो किस्मत है अपनी, और क्या कर लेंगे। सर आई एम एग्रीइंग विद यू, कॉल बेचना मैं 1000 पॉइंट नीचे का पुट बेचना छोटे से पैसे के लिए भी नहीं कभी रिकमेंड करूंगा। मैं कॉल बेचना फिर भी कह दूंगा, चलो आप 18,000 का कह रहे हो, पर आप अगर ये बोल रहे होते, क्योंकि आपने अपर सर्किट देखा है, लोअर सर्किट भी देखे हैं, चांसेस किसके ज्यादा रहते हैं हमेशा? रात को ऐसी बड़ी खबर न्यूज आना, भाई लोअर के ज्यादा रहते हैं मार्केट में, सर वही कह रहा हूँ, बहुत कम रहते हैं सर, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं पुट बेच के नहीं कभी बोलूंगा किसी को कि 2-4 रुपए का पुट बेचो। मैं ये फिर भी बोल सकता हूँ 2-4 रुपए का कॉल बेच सकते हो बहुत दूर का, लेकिन पुट के लिए मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि ऐसी खबर आना कि भाई बहुत अच्छा हो गया, मार्केट झूम के नाच गया कि दिन में सब कुछ पलट गया, चांसेस कम होते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि हम मार्केट धड़ाम से गिर गया, क्योंकि बुरी चीज ज्यादा जल्दी फैलती है। Let's take a view from Jagveer. He was bearish. भाई का टारगेट हिट हुआ, 4 दिन पहले भी भाई स्पेस में बोल रहा था। जगवीर, गो अहेड प्लीज। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। जगवीर, एक रिक्वेस्ट, एक अच्छी सी फोटो डाल दो ना भाई, वो इतना ब्लैक दिखता है ना, हम काले गोरे जैसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, एक फोटो डाल दोगे? एक्चुअली मैंने अमित भाई एक्चुअली I just want to interrupt. I want to remove 1-2 speakers here. तो जो अभी जैसे चिराग भाई है,
तो अगर वो भी ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। चिराग को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, सोवित को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, कोमल को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, हैरी को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। अभी ज्वाइन नहीं किया। सर मेरे को हटा दो। अरे वो हटाने की नहीं, जब भी होगा मैं वापस ऐड ही कर देता हूँ ना, जैसे ही रिक्वेस्ट आता है मैं ऐड कर देता हूँ। मैं कभी वो नहीं करता कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग सुन ले, सबका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ जाए। हाँ तो Okay, I will leave from the speaker panel. ओके, थैंक यू। बट हर्ष बी देयर, कोई क्वेश्चन तेरे लिए आएगा ना तो मैं वापस तुझे ढूंढ के पकड़ के लाना पड़ेगा घर से। मैं ट्राई करूंगा रहने का। एक्चुअली मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है 5 बजे। बर्तन ज्यादा हो गए, बर्तन ज्यादा हो गए आज। अरे नहीं, कल फंक्शन जाना है। या जगवीर गो प्लीज। अमित भाई आपने तो सोच 7 DMA के नीचे ही निफ्टी चल रहा था जब चार्ट डेवलप किया था 15 मिनट का हेड एंड शोल्डर 17,380 था, तब अपनी बात हुई थी अगर 17,450 के ऊपर क्लोज देगा तो अपने पोजिशनल एग्जिट ले लेंगे। फाइनली हेड एंड शोल्डर का जो लो था वो 16,666 और 600 के करीब आ रहा था, वो आज निकल गया, सारी पोजीशन निकल गई है। लेकिन अभी भी बेयर व्यू वहीं के वहीं है। कल एक्सपायर है, इसीलिए थोड़ा बहुत वो लोग पुट के प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 70-80 पॉइंट ग्रीन में ही क्लोज दे, लेकिन फ्राइडे वापस से ये पेल देंगे। जो दूसरा डाउन साइड सपोर्ट आ रहा है वो 16,180, और ये भी बहुत ही फास्ट आएगा। जब अपने 17,000 के नीचे की बात हुई थी तब अपनी बात हुई थी कि जो भी आएगा फास्ट ही आ जाएगा टारगेट ये, तो जो 16,180 आएगा वो भी फास्ट ही आएगा। तो जगवीर उसके लिए अपना स्टॉप लॉस क्या होगा? कोई ना आ जाए बेस्ट। बिल्कुल 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 उसका जैसे इसने जो गैंग अपने गैंग की प्राइस की भी बात हुई थी, पता है अपनी बात हुई थी कि उसने टच कर लिया हुआ 17,424 टच कर लिया था गैंग फिगर, उसके बाद शॉर्ट में घुसे थे अपने कि अब हो गया वो, उसके बाद ये टारगेट आएगा। तो यही होगा, जैसे 17,950 नहीं तोड़ रहा था और 850 अपना जो लॉन्ग प्लेयर थे उसका टारगेट था 16,850 और 16,800, और वो टूटेगा ही टूटेगा और तोड़ेगा ही तोड़ेगा। इस बात पे डेफिनेटली होल्ड थे शॉर्ट्स और सारे लॉन्ग के एसएल उड़ा दिए। अब जब तक ये 16,900 के ऊपर बंद नहीं देता तो यहाँ से 600 पॉइंट और नीचे पकड़ के चलो। 16,900 का स्टॉप लॉस और ये 16,400 का पहला टारगेट, और उसके बाद अगर प्रेशर आया तो 16,180 आएगा ही आएगा। तो ऑन राइट टैली है मार्केट, ऑन राइट टैली है। मैं आपको स्टॉप लॉस पूछा कि ये व्यू कब चेंज हो जगवीर जाएगा? भाई आपने तो वो आपका प्रोफाइल पिक्चर ही 16,600 डन लगा दिया, 68,600 बिल्कुल, एक्चुअली 17,380 से शॉर्ट था मैं इस टारगेट के लिए, और मैं तब से ये स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ हेड एंड शोल्डर। 15 मिनट पे क्लियर कट हेड एंड शोल्डर बनाया था, और जो 17,424 गैंग प्राइस था वो टच करके जब उसने नीचे क्लोज दिया उसके दूसरे दिन से ही मैं अपने स्पेस पे भी डिस्कस किया है अमित भाई पे, मैं सेल में आ गया था। और अभी भी लॉन्ग प्लेयर फंसे हुए हैं, तो मेरा मानना है ऐसा होता है कि डब्बे वाले 60 to 70% फंसे हुए होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना हायर लेवल पे, तो डब्बे वाले का सेटलमेंट भैया लेट्स नॉट टॉक अबाउट डब्बा एंड एनीथिंग एल्स। ये जो इलीगल चीजें है ना, ये बात ही नहीं करनी है प्लीज, रिक्वेस्ट। नहीं, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों का सेटलमेंट मंडे टू फ्राइडे होता है। हेलो, हाँ हेलो, अरे आवाज? हाँ बिल्कुल हाँ जगवीर जी बताइए। बिल्कुल, पर आप तो किसी को फ्राइडे मेंशन को मत कीजिए। हाँ नहीं, फ्राइडे को क्या है, नहीं समझ गया मैं, वो वर्ड नहीं आएगा अभी। तो फ्राइडे को जनरली क्या होता है ना कि लॉन्ग वाले को नहीं निकलने देंगे, मोटा मोटी ऊपर लेके वापस नीचे ही फेंकेंगे। तो जो भी ट्रेंड चेंज होगा वो मंडे से होगा। तो कल जो भी अगर ऊपर जाता है तो ऑन राइज सेल ही है मार्केट, बिल्कुल सेल है। बस अमित भाई इतना अपडेट देना चाह रहा था। थैंक यू बॉस। थैंक यू जंगीर भाई। चिराग भाई इफ यू आर लिसनिंग प्लीज जॉइन एज एन स्पीकर। कोमल रिक्वेस्ट भेजा है बेटा, एक्सेप्ट कर। हैरी तुझे भी रिक्वेस्ट भेजा है। आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू रवि आल्सो, इफ यू कैन ऐड समथिंग। सोवित इफ यू हैव स्टॉप ट्रैवलिंग, घर पहुंच गया या जा भी है, आई हैव सेंड यू रिक्वेस्ट आल्सो। हिमांशु आ गए?
हाँ हाँ आशीष जी, कैसे जयपुर पहुंच गए वापस या जोधपुर में ही? अभी दंगे हो रहे हैं जोधपुर में काफी नहीं ज्यादा। नहीं पहुंच गए साहब, निकल के जैसे तैसे। बढ़िया बढ़िया, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए आशीष अच्छा, जी। 3-4 चीजें थी बॉस। एक तो स्टॉक स्पेसिफिक था, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, IIFL फाइनेंस और अपना पॉलीकैब। IIFL 350 वाला ना? 350 वाला सर। हाँ, वो मैंने ट्रेड भी दिया था लाइव मार्केट में, और वो उसका स्टॉप लॉस मेरा एक बार ट्रिगर हो गया। सो अभी मैं वेट करूंगा उसका रिवर्सल का। ठीक है, मैंने 355 का स्टॉप दिया था, बट दैट चार्ट इज स्टिल गुड। मार्केट जब गिरता है ना, तो मार्केट है ना, सब सब सारे स्टॉक गिरते हैं उस टाइम। ऐसा कोई स्टॉक मुश्किल से बचता है जो ना गिरेगा। आज शायद सुमितोमो केमिकल में है ना, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो मैं सिर्फ टॉप गेनर्स देखता हूँ कि भैया कहाँ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर वो स्टॉक ट्रैक करना। बाकी दो मैं ट्रैक नहीं करता, प्रॉब्ली चिराग ट्रैक करता रहेगा या कोई और ट्रैक करता है, तो दे कैन आंसर अबाउट इट। नहीं अमित साहब, मैंने सुमितोमो केमिकल तो नीचे के लेवल पे लिया था, मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही निकाला। वो मूवमेंट नहीं कर रहा था तो मैं निकाल गया, बट आज सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा मूव दिया। इसी के फॉलोअप में एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जो BBTC का बॉम्बे बर्मा का जो अभी जो पैटर्न है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स अभी जो फॉर्म हो रही हैं और अभी फिर वापस वहाँ से कुछ करेक्शन आ रहा है, तो ये जो करेक्शन विद लो वॉल्यूम्स का जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, उस पे आपका क्या व्यू है? ये मतलब अभी इसको इंटैक्ट रखना चाहिए फॉर लॉन्ग, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली लिया हूँ BBTC। नहीं, वापस वापस रिपीट करना ना, मैं क्यों, मेरा फोन आ गया था कोई, तो मुझे काट के वापस सुनना पड़ रहा है आपको। तो BBTC का एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि BBTC के अंदर ये जो लार्ज वॉल्यूम्स के साथ में जो कुछ बड़ी कैंडल्स बनके और लॉन्ग एडिशन हुए हैं और बहुत कम वॉल्यूम के साथ में वापस जो करेक्शन हो रहा है, तो ये जो फिलॉसफी जो है, इस पे आपका क्या व्यू है? और क्या इस थ्योरी के साथ में अजम्पशन के साथ में क्या इस पे लॉन्ग जाना चाहिए BBTC पे? मैं रिसेंटली अभी ऐड किया हूँ। हाँ, मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ। मैंने BBTC का वापस ट्रैक नहीं किया, बट मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ कि अगर ब्रेकआउट लार्ज वॉल्यूम के साथ आता है और ब्रेक डाउन वापस लो वॉल्यूम के साथ आता है और मार्केट थोड़ा, वो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर देता है और उसमें वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं, मतलब कोई बड़ा सेलिंग नहीं आ रहा है, वो सिर्फ जो वीक हैंड्स है उनको हटाने के लिए वो चीज हो रहा है। वो वीकेंड जब हट जाएंगे, जैसे BEC का स्टॉक देखोगे, आनंद ने पोस्ट किया था, वो आनंद का चार्ट जाके चेक करना, आनंद लोहार का। ठीक है, तो वो जब चार्ट देखोगे ना, तो वॉल्यूम plays a major role when a stock is falling. If it is falling with major volumes, with major delivery volumes, समझ में आएगा कि भाई कोई बड़ा एग्जिट मार रहा है। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो सिंपल जो लास्ट के बंदे आए ना, ब्रेकआउट देख के, सबको ब्रेकआउट आजकल समझ में आ जाता है, एक लाइन खींच लेंगे। भाई ब्रेकआउट का एक मतलब होता है, ब्रेकआउट को जस्टिफाई करने की भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट काम करेगा नहीं करेगा। और इस मार्केट कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट फेल के ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू कि ब्रेकआउट सस्टेन करके ऊपर का ऊपर चलता रहेगा। मतलब अगर 100 ब्रेकआउट आएंगे ना, तो 100 में से चांसेस है कि 90 फेल हो जाएंगे। अपना एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैं बच्चों को सिखाता था, मैं जो वर्कशॉप करता था, बहुत सिंपल एग्जांपल। एक सीजन होता है जब शादियां होती है, ठीक है, तो अपने तो जो तुम्हें इतनी शादियां होती हैं, तो अपने को सब लोग बुलाते हैं। हिमांशु के घर पे भी शादी है, किरीट सर के घर पे भी शादी है, अमित भाई के घर पे भी शादी है। अमित कर रहा है कि अपने घर के बाहर टेंट बांध के, किड भाई कर रहे हैं कोई 3 स्टार होटल में, हिमांशु बहुत पैसे वाला है तो हिमांशु कर रहा है 5 स्टार होटल में। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड में हो, ठीक है, और हिमांशु को आप दूर दूर से नहीं जानते, हिमांशु को सिर्फ ऐसे ही जानते हो। किड भाई के आप अच्छे से फ्रेंड हो, ठीक है। आप क्या चीज करोगे कि आके मुझसे पहले मिलोगे, एक लिफाफा दे दोगे और चले जाओगे। किड भाई से भी मिलके एक लिफाफा दे दोगे, खाना खा जाके खाओगे 5 स्टार होटल में। तो जब सीजन चल रहा है ना ब्रेकआउट का, वो सीजन होना चाहिए ब्रेकआउट का। अभी मार्केट ऐसा साइडवेज में इतने बड़े मूव दे रहा है ना, तो उस टाइम पर है ना, मैं ब्रेकआउट पे अभी ट्रस्ट भी नहीं कर रहा कि भैया ये ब्रेकआउट काम करेगा नहीं करेगा। वो ब्रेकआउट फेलियर पकड़ो, वापस देखो उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ रहा है विथ लो वॉल्यूम्स। पहली बार उसने ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया, पब्लिक को फंसा दिया, बट जिसने खरीदा वो बेचने नहीं आया। इसके बारे में ना नितेश ने बहुत अच्छी चीज लिखी थी, नितेश पटेल की बात कर रहे हो कि भैया जो अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना,
तो वो अपने 5% 10% मूव के लिए नहीं दे रहा, वो बड़ा पैसा दाव पे लगा के चल रहा है। तो वो उसको है ना एटलीस्ट 25 30 40% चलाएगा। कितना चलाएगा एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम। तो वो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए, थोड़ा टाइम साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए और उसके बाद उसमें मूव आए। तो उतना पेशेंस रख के चलोगे और ब्रेकआउट आए ना तो एक बार एंट्री मारो। हो सकता है ऐसे हमारे 10 ब्रेकआउट फेल हो जाएंगे, बट क्वांटिटी आपको 100 शेयर खरीदे तो आप 20 के साथ स्टार्ट करो। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधा 100 शेयर ले लो, आप 20 के साथ स्टार्ट करो। नीचे आ रहा है वापस ऐड करो, देखो कहाँ रिवर्सल कैंडल बन रहा है। तो रिवर्सल कैंडल हमको पकड़ के चलना पड़ेगा कि जहां हमारा ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। प्लस मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन ऐसी जिगजैग रहेगी, भैया ब्रेकआउट में कौन कभी पैसा लगाएगा, क्योंकि रात को तो ब्रोकर को ही पैसा देना है ना, कि मैं कुछ और करके बैठा हूँ, वहां पैसा जा रहा है और ये तो मुझे पैसा आज दे नहीं रहा है, तो हम वही पोजीशन काट के चले जाएंगे। तो मार्केट की कंडीशन, मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या इम्पैक्ट होने लगे कंपेयर। प्लस आज तो अपना खुद का इंटरनल इम्पैक्ट था, डाउ फ्यूचर कुछ भी नहीं कर रहा था, तो अपने भी लोकल इम्पैक्ट आ जाएंगे कभी ना कभी। तो इसी सेम सिनेरियो में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या कोई रिवर्सल लगता है आपको? यार आई डोंट ट्रैक स्टार हेल्थ, मुझे मैं नहीं देखता, तो मैं उस पर कमेंट भी करना मेरे लिए बेकार चीज है। कोई अगर ट्रैक करता है तो आशीष भाई इसको नेक्स्ट उसके लिए पुट अप करते हैं। अभी आपको अच्छी एडवाइस मिल गई 2 स्टॉक पे। सो सोवित इज हियर। सोवित भाई बोलिए। बताइए सर, मार्केट पे व्यू और कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता हो या ऐसा लगता हो कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वो भी एडवाइस दीजिए। मार्केट में व्यूज तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं बोलूंगा, मीडियम टर्म में डाउन ही है। लॉन्ग टर्म में मेरा तो व्यू अप ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो 1.5 साल का रैली हुआ है वो खत्म हो गया है। जब भी बड़ा बुल मार्केट आता है तो वो 8-10 साल का रहता है मेरे हिसाब से। तो ये वो बड़े बुल मार्केट का एक करेक्टिव मोड है, जो 6 महीना 9 महीना 12 महीना भी चल सकता है। वी डोंट नो दैट, बट ये एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का एक मीडियम टर्म करेक्शन मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें मेरे लॉन्ग्स भी है, शॉर्ट्स भी है, दोनों टाइप से। मैं तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों खेलता हूँ, तो दोनों पोजीशंस हैं, बट ऑब्वियसली मेरा लॉन्ग ज़्यादा है, शॉर्ट कम है। ओके, मैं हैज की तरह देखता नहीं हूँ, मैं हैज कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ऐसा रहता है कि देयर इज नो परफेक्ट हैज, और अगर परफेक्ट हैज है भी तो उस पर आप फिर कमा नहीं सकते। राइट, तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में बेरिश ही है व्यू। ओके, और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ बैठे रहो। आज भी काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो अभी मैं मेरा जनरल ही बना रहा हूँ बैठ करके, मैं साथ साथ सुन भी रहा हूँ। थैंक यू सोवित। जतिन शाह, जतिन जी बताइए अपना क्वेश्चन। यस सर, कि अभी ये करेक्शन है मार्केट, जैसे आप लोग बहुत डेटा लेकिन ये जो पूरा रैली हो गया, अभी थोड़ा लो 52 वीक लो। अब तक लोग क्या सब ATH देखते थे, अभी सबके चार्ट में आ रहा है भाई लो 52 वीक लो आ रहा है लिस्ट। पहले सब लोग ATH का ही लिस्ट दे रहे थे और अभी एक लो की दे रहे थे। तो इसमें वैल्यू बाइंग के लिए शुरू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए? जतिन उसमें एक काम करो, आप है ना SIP के थ्रू करो, मतलब हर फॉल पर 10 to 15% ऐड करो कि भैया हर 200 पॉइंट गिरेगा मैं 15% ऐड करूंगा विद द डिफाइंड स्टॉप लॉस कि अगर 15600 टूट जाता है मैं मेरा पूरा पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि आज का जो ADR था ना, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, दैट वाज टोटली ओवरसोल्ड। हो सकता है कल भी ओवरसोल्ड रहे। 12:30 बजे वो क्या बोलेगा यूएस में अंकल, अपने को किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या निकल के आएगा, नन ऑफ अस नोस। ना हमारा पास कोई उनके पास हॉटलाइन है कि हम समझ सकेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। तो ये ऐसा जोन आ गया ना कि यहाँ पे बाइंग करोगे ना तो रिस्क लो हो जाएगी, बट पूरे पोर्टफोलियो का
अब जो अगर फॉर एग्जांपल कल से आप खरीदना शुरू करते हो 15% एवरी 200 पॉइंट फॉल आप बाय करोगे तो आपका उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 15,500 और 15,600 कि इफ दीस लेवल्स आर ब्रोकन आई विल एग्जिट माय पोजीशन एज सिंपल एज दैट यस सर। और अमित एंड इसमें नहीं, एंड इसमें बाय मैं एंड थोड़ा सा बाय एक चीज अगर ना जैसे अमित ने हमेशा एडवाइस दी है स्पेसिस भी और पर्सनली मुझे भी, मार्केट जहाँ डाउन ट्रेंड में जा रहा है या आपको कुछ हैज करना है तो निफ्टी 20 आर द बेस्ट ऑप्शन। उसको आप किसी भी लेवल पे खरीदते रहिए ये क्योंकि मैं आपको बैंक उसमें खरीदता हाँ नहीं मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ जतिन जी। उसको आप किसी भी लेवल पे खरीदेंगे तो वो आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल जाएगा। मतलब वो एज गुड एज SIP है। इफ यू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20 इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। अमित कैन एक्सप्लेन बेटर। निफ्टी 20 पे अमित एक बार एडवाइस देना। सिंपल बोलता हूँ, आपको निफ्टी नहीं समझ में आता, ठीक है, मुझे भी चलो निफ्टी नहीं समझ में आता, हर्ष को तो निफ्टी एक बूंद नहीं आता। मैं बच्चा हूँ, सोवित अनपढ़ है, हिमांशु गांव से आया है, हमें किसी को निफ्टी नहीं समझ में आता, फ्रेंकली बोलता हूँ सबके मुंह पर। बट अब पैसा तो बनाना है, या तो शॉर्ट कर ले, और शॉर्ट करने में हमें लगता है डर, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम निफ्टी के 20 खरीद सकते हैं, हम 5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, हम 10 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, हम 50 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, मतलब 10, 20, 50, whatever we want to allocate, and we can allocate it on every day basis. Every day basis. If I'm seeing a fall on Nifty, say every 200 points fall or 100 points fall, I have decided every fall. अमित योर वॉइस ना हाँ म्यूट कर दिया मैंने। सो एवरी फॉल कीप बाइंग। सो आपका जो डॉलर एवरेजिंग कॉस्ट है, देखो निफ्टी, इफ यू फील कि निफ्टी विल गो टू जीरो, देन गॉड ओनली नोस कि वी विल बी इन दिस मार्केट, या हम गांव जाके मजदूरी कर लेंगे, तो हमें भी नहीं पता है, ठीक है। बट इफ यू फील कि भैया इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, इंडिया निफ्टी आज नहीं 5 साल बाद 35,000 40,000 चली जाएगी, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो उसमें हर फॉल पे खरीदो। आपको फॉर एग्जांपल 1,000 खरीदना है, आप 10 क्वांटिटी से स्टार्ट करो ना, आप 20 क्वांटिटी से स्टार्ट करो और नीचे नीचे लेते रहो। जैसे ही वो आपका प्रॉफिटेबल फर्स्ट वाला लॉट बन जाए जो सबसे नीचे लिया था और वो थोड़ा ऊपर चला गया, वो 20 क्वांटिटी बेच दो, उसका प्रॉफिट बुक कर लो, तो आपकी कॉस्टिंग ओवरऑल कम हो जाएगी। इस तरीके से तो निफ्टी ट्रेड किया जा सकता है ना। सेम विद बैंक निफ्टी का 20 मिलता है। आपको कोई सेक्टर पसंद आता है, निफ्टी IT पसंद आता है, उसका आपको 20 मिल जाएगा, ETF मतलब वो मिल जाएगा। तो देखो इन्वेस्टमेंट आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिस्टमैटिक तरीके से चलो, एक साथ जाके 1 लाख रुपया मत डाल दो, आप 1,000 2,000 करके भी डाल सकते हो ना, उसको 50 ट्रांचेस बना लो। गिरेगा उस दिन मैं खरीदने खड़ा हूँ, बढ़ेगा उस दिन मैं बेचने बैठा हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा। और ट्रेंड आपके साथ चल रहा है, एक सिंपल ट्रेंड पकड़ के चल लो, एक कोई मूविंग एवरेज यूज कर लो कि भैया ये निकला तो मैं निकल जाऊंगा, ये टूटा मैं निकल जाऊंगा, उसमें अपने खुद के रूल्स बना लो। हम इतने रूल्स समझा देते हैं, इतनी स्ट्रैटेजी समझा देते हैं, वैसे उसके हिसाब से काम कर लो ना, पैसा पक्का बन जाएगा मार्केट में। पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजें, हम चीजें सिंपल नहीं रखती। ठीक है जतिन भाई, जतिन हिमांशु, am I audible? Yeah, I think yes, you are audible. I think उनको रिप्लाई मिल गया उनके क्वेश्चंस का। रेमेडिक्स सर आपका नाम क्या है? मार्केट +20 बताइए सर। हाँ मैंने अंकित रिक्वेस्ट भेजा है भाई, कोमल वापस तुझे भी रिक्वेस्ट भेजा है, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सीके को रिक्वेस्ट भेजा है, ये पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सब। And if Ankit joins now, we'll again discuss that FII data, because he tracks the data like me only. हमें डेटा ट्रैक करना है ना, बहुत अच्छा लगता है, हम डेटा जब ट्रैक करते हैं ना, हमें उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। अंकित। Yes sir, good evening. Ankit, very good evening. FII have doubled their shorts. Same time, clients and pro have added onto their longs. Yes sir. Your views? दोनों साइड एक्सट्रीम हो रहा है सर, और कोई ना कोई तो ब्लिंक करेगा एंड थोड़ा मीन रिवर्जन होगा।
तो मुझे लगता है 16,400 500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर फेड का डिसीजन आने वाला है, तो अगर वो खराब भी होता है तो हम थोड़ा बहुत तो उसको प्राइसिंग कर चुके हैं। तो अगर कुछ और भी फॉल हुआ तो 16,400 500 पे वो फॉल अरेस्ट हो सकता है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 16,500 तो जैसा कि आप जानते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा पुट पे, एंड 16,400 दिसंबर का लो है जहां से एक बार निफ्टी काफी अच्छा बाउंस किया था। एंड 16,400 पे अगर आप ध्यान से देखें डेली चार्ट पे तो एक गैप सपोर्ट भी है। तो ये 2-3 चीजें हैं एक ही 100 पॉइंट की रेंज में। तो आज जो लो लगा था अगर उसको तोड़ भी देता है तो 16,400 500 के बीच में निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। सेम वाइज बैंक निफ्टी 34,700 है। 34,700 का एक अच्छा पूरी राइज का 61.8% रिट्रेसमेंट है 34,700। तो वैसे ही बैंक निफ्टी भी होना चाहिए। FIs फुल फ्लैट शॉर्ट चले गए हैं, सब कुछ शॉर्ट है, पुट ले गए हैं, फ्यूचर बेच गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर और कॉल भी शॉर्ट है। तो एंड कैश बेस सेलिंग तो चल ही रही है काफी टाइम से। तो मेरे हिसाब से हाँ चिराग भाई, हाँ जी नहीं अंकित सर का सुनना था, उसके लिए मैं स्पीकर बना। और एक रिक्वेस्ट है, गोविंदा सर आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट करो। लॉन्ग टाइम वी हैवंट हर्ड फ्रॉम यू। We would like to hear your view after today's RBI's rate hike and where you see the market. So please accept the request, Govinda sir. Ankit sir, sorry to I have interrupt you. requested twice. चिराग मैं तुझे पोस्ट बना दिया है, so you can send him a request also. Accept that request, please. Yeah, Ankit, go ahead till then. Yes, तो मैं Sorry, यही कह रहा हूँ Ankit. कि मैं यही कह रहा था कि 16,400 500 पे आई थिंक FIs थोड़े तो शॉर्ट काटेंगे एंड वहाँ पे एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। वेट करिए लोअर टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल कैंडल बनने का, मतलब सिर्फ 16,400 आ जाए तो ऐसा नहीं कि बाय कर लेने का। कोई आर्ली 75 मिनट चार्ट पे कोई एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बने, उसके लो के स्टॉप लॉस पे जो एक थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस होगा उस पे आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे एक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और बिटवीन दिस जोन डू ट्रैक ड्यूरिंग द डे 16,400 to 500। तो यही व्यू है अभी। एंड अगर 16,400 500 टूट जाता है तो मेरे हिसाब से जो ये फॉल है वो जो हम वीकली पे अगर आपको ध्यान हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे थे वो भी फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर 16,400 के नीचे निफ्टी क्लोज दे देगी या सस्टेन करेगी उसके नीचे। तो क्योंकि वो पैटर्न पूरा बनेगा नहीं और फिर वो अलग ही पैटर्न बनेगा, मतलब बेसिकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। हो सकता है वो 15,600 अगर 16,400 तोड़ दे तो 15,600 तक जाके डबल बॉटम बनाए या एक हायर बॉटम बनाए, तो ट्राइंगल का भी शेप ले सकता है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बट अगर 16,400 टूट गया तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आज का इवेंट भी काफ़ी क्रूशियल है एंड वही डिसाइड करेगा। Thank you, Ankit. When we started the एक second. When we started the space, I had the same view. 16,400, 16,500 is the place I'll be looking for a reversal, probably till 17,000. कल नहीं हो तो हो सकता है फ्राइडे को हो जाए या मंडे तक हो। And same 34,700 was my level also. On the upside tomorrow, downside is 34,700, upside 35,500, 35,600 max. That is what I'm seeing on Nifty, Bank Nifty. All these levels are spot levels, not future levels. And since we have Govinda sir, please. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी गोविंदा जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जो दोनों साइड्स हैं, शॉर्ट की हैं पार्टिसिपेंट्स हैं और लॉन्ग के पार्टिसिपेंट है, वो काफी एक्सट्रीम चले गए हैं। जैसे क्लाइंट है तो 1.1 लाख लॉन्ग, अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ्स का डेटा तो इतना कभी भी नहीं गए हैं जो रिटेल है लॉन्ग। एंड सिमिलरली FIs जो शॉर्ट गए हैं वो 75, 80,000 तक जाते हैं, उसके बाद
कवर करते हैं पुश। अंकित आज वो डबल हो गया है, 36,000 तो कुछ था, ऑलमोस्ट 70,000 प्लस हो चुका है। 75,000 ऑलमोस्ट डबल। ये 75,000 हो गया, बट वही डबल हो जो चुका है। एक्सट्रीम में वो जाते हैं 80-85,000। एक्सट्रीम है, राइट। एक्सट्रीम में जो Yes. जाते हैं वो 80-85,000 जाते हैं। तो आई थिंक समवेयर बिटवीन 16,400-500। And Ankit, if you are tracking ADR, advanced decline ratio, today many sectors have zero advances and all declines. Yes. So ये डेटा भी अगर आप देखोगे ना, ये देखो हम डेटा पॉइंट्स जो पकड़ते हैं ना, बेसिक डेटा पॉइंट्स पकड़ रहे हैं। Yes. ये बेसिक डेटा पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है 1 या 2 दिन में। कल बनेगा, एक्सपायरी है हमें नहीं पता, या परसों बनेगा हमें नहीं पता, बट आप उस चीज का वेट करो। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड टू शॉर्ट इज वेरी हाई। Yes. Ankit, I have a request for you. Don't exit. We'll let Govinda sir speak. After that, I'll come back to you. तो आज का इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट ओपन रखना. I'm going to ask you questions. At what level, what thing broke and you bought what options, and how did you analyze it in real time? ठीक है. So तू चार्ट प्रिपेयर, मतलब लैपटॉप ऑन करके चार्ट्स निकाल के रख. गोविंदा सर का सुनते हैं. And then how you actually executed today's trade. Okay, in real time कि ऐसा हो रहा था, which strike price you selected, why you selected, and when did you take a exit. I know what you actually did in the whole day, but let everyone else also understand that. It will help them. After Govinda sir, I'll again come back No to problem. I'm happy to share. you. Yeah, Govinda sir, thank you for accepting. Long time we haven't heard from you. So today surprise rate hike. Where do you see fundamentally markets ahead? Are we overpriced, underpriced? Where do you see we headed? Which sectors will be impacted more? Which will take benefit from this? And how should one now position where the complete cycle is changing towards rate hike, which possibly now is like clearly he said that 5.15 is under his calculation. So June we can see one more 25 bips or 35 bips hike, or probably even go higher than that to tame inflation. So how are you looking at it on fundamental view, sir? Thank you, sir. Sure. Hi guys. Hi everyone. So broadly, the way I am listening chatter around the markets from institutional analysts who are tracking India overall, both domestics and FIIs, the way everyone is pricing around a 50 bips hike over the next till December, maybe over the next 6-8 months. That is a given, and I think people have moved on with those assumptions in their respective models, the way they track various sectors. So मतलब वहां तक किसी को शॉक नहीं लगने वाला, फंडामेंटली स्पीकिंग. उससे ज्यादा हुआ तो ऑफ कोर्स हाँ, इन्फ्लेशन इज अ गिवन, बट आई थिंक ओवरऑल fundamentally speaking, a lot of traction is still being driven by our domestic institutions. म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज कम नहीं हो रहा है और लग भी नहीं रहा है कि होंगे. So that again is going to drive the Indian markets broadly. FIIs may continue to sell, but as I see it, हो सकता है मतलब इमीडिएट टर्म्स में निफ्टी लेवल्स पे शॉक आवे, मार्केट में गिरे, और बट सेक्टर स्पेसिफिक there are bets people are willing to take in manufacturing, overall industrials and chemicals, cement, and sectors. Financials वगैरह में थोड़ा पेन रहेगा, but non financial side पे काफी इंटरेस्ट है लोगों को आज. Sir, so sorry to interrupt you. Sure. Just wanted to share a piece of news. The Fed has interest hiked by 50 basis points. That is the latest thing. डव का क्या रिएक्शन? डव का क्या रिएक्शन है? कितना कम करेंगे एवरी मंथ? हिमांशु, डव के गिरा, कितना गिरा? डव का क्या लेवल चल रहा है? एक मिनट अपडेट कर रहा हूँ. अभी ये जस्ट न्यूज आया था, 50 बेसिस पॉइंट फेड का था. I'll update. $200 पॉइंट अप है.
ब्रॉडली आई थिंक इस बार के लिए 50 बिप्स पे लोग ऑलरेडी बिल्ड इन करके चल रहे थे, सो should not be a surprise as much. सरप्राइज हमारे लिए था बस। that is in line to the market expectations, sir. Yeah. Okay. Yeah, Govinda sir, please continue. Sorry, continue. Yeah, नहीं, so broadly I think fund मतलब जो inflows आ रहे हैं domestic market में, that is going to be gung-ho, I think, even going forward. Sir, I've got a news that they will just let me read it out. Fed to start runoff June 1st at $47.5 billion per month. This is very bullish. Expectation was $95 billion. Yeah, exactly. 95 billion की बात होती थी पहले. That is why I interpreted and told the news. That's good, I think, overall, from a liquidity flow perspective. This is very bullish. So it was on expected lines. What I am reading, it was an expectation was 1%, and we have reached to the 1% level. So there was nothing surprise. Now but ये expected line पे था, so probably Nifty ने भी शायद discount कर लिया. अब क्या होगा नहीं पता. Sir, Govinda sir, please carry on. Yeah, नहीं, so primary flows में I think market में अभी overall आप काफी IPOs आते हुए देखेंगे over the next 1.5 months. काफी pipeline अटकी हुई थी because of LIC. Once that is out of the way, I think that will also show a lot of foreign inflows coming in good stories. And of course, domestic market will be the price makers here. So that is going to be the driver. I think broadly जो अपन FII selling के numbers देख रहे थे, that will probably continue majorly on a trend basis over the next 8 months maybe. But I think our domestic markets are enough to absorb all of it. Govinda sir, one more information that I'm getting is Fed says it is highly attentive to inflation risks. Sir, how do we read it? That we are highly attentive to inflation risk. That is what Fed have said so far now. They'll basically accommodative करते रहेंगे, inflation को ज़्यादा out of control नहीं जाने देंगे. But at the same time, they want to pump the markets also reasonably, not to scare everyone around. So you feel markets will move up or down? मतलब in a longer, say next 6 months. We are not talking about tomorrow only. Because you are India should be up, sir. India should be up from where we are today. I don't know about global markets, but India should be up. तो अंकित कल FII की लगेगी? On a lighter note, nothing else. हम वो डेटा का डिस्कस कर रहे थे. Govinda sir, FIIs have been exiting, but are there some place which they are buying also? Are you seeing where they are increasing stake or something? Primary markets मतलब IPOs में आ रहे हैं sir, selectively in decent chunks also. But majorly जो index level stocks हैं उनमें वो लोग selling करते रहेंगे continuous. जो passive flows आते हैं उसमें so main selling goes in HDFC Twins, but that seems to got over now. Yeah, I what I'm hearing is people are adding, FIIs are even adding HDFC Twins now. Okay, that's some positive. Yeah. So today's rate hike, will it help banks? CK, एक और news point आया है. Fed expects ongoing increase in rates will be appropriate. Now, what does that mean? That ongoing increase in rates will be appropriate. Means they'll hike only 25%. 25 bps, which is as per the market expectations. मतलब 25 से ऊपर ना जाएगा? नहीं, जा सकता है appropriate. मतलब क्या है कि अगर inflation एकदम ज़्यादा बढ़ा, so they will compare it with inflation. If inflation keeps on increasing, then appropriate way compared to inflation, they will increase the rate hike. If inflation stays at the same level or doesn't move exponentially high again,
then they'll continue with 25 basis points. So if I look at the chart of 10 year, 3.25 on US is a very important resistance. I don't think so that will be crossed easily. From there, I'm expecting a pullback again to 2.5-ish levels because inflation will start cooling off. We have seen commodity prices and agricultural prices in the US cooling off sharply. So probably the inflation numbers which will come over the next few weeks over there will show a flattish curve but not an increase. Chirag, that is a bullish commentary, I suppose. But let's hear Govinda sir. He's come after a long time. Let's give him all the time. Sir, I'm here. I'm around, sir. Kabhi bhi aap boliye. But yeah, broadly, I think overall the way I am reading even right now, speaking here, it seems very bullish to me. Govinda sir, I have a question. Can I follow up? You use the word accommodative stance, and just now Amit mentioned that they are going to increase the rates on ongoing basis as and when required. So how do we correlate these two? Komal, they use the word appropriate basis, and there is one more new piece. Runoff pays to rise to maximum $95 billion per month after 3 months, not now. Right. So we have 47.5 as on today's date, but it can go up to maximum $95 billion per month. गोविंदा सर एक क्वेश्चन है 2008 ओह सॉरी कोमल अमित की बेटा सॉरी So how do you correlate these two terms, like accommodative plus also ongoing appropriate rate hikes? So basically they are trying to say ki we will look at the situation and decide. Nothing is final, but upper end they have said ki we'll cap it at 95 billion kind of number, which the market has already priced in, I think. But given the surprise here, the positive one that they have given of 47.5 this month at least, that itself is a good news. Okay. Yeah, CK please. Chirag bhai, go ahead, ask your question. CK. So, in a nutshell, whatever I understood, I don't follow so many things. Govinda sir, my question was on a larger range. There was one time when China was growing very fast and it was ignoring all the world markets. When will that golden phase for India come? And do you think we are about to start that whatever happens outside the world will be ignored by India and we will have a golden phase? Sir, I think we are in the middle of that phase. We are in that phase right now. I think that cycle should last another 5 to 10 years maybe. That also did with China, I think. So we are already in that cycle. And basically I would say this decade should lead us towards that sort of a stature. Sir, Govinda sir, I wanted to ask one. Chirag bhai, please continue. So if that cycle has to play out, what will be your top bets? Sector-wise. Let's not take stock name. Sector-wise. Yeah. So, like I said, like I have always previously said also, I'm more bullish on India's own manufacturing capabilities. And IT export services is already a well-tracked theme and it will continue to grow. But manufacturing mein logon ne, people are yet to find that niche in owning such stocks. And that is getting discovered slowly and surely. So overall, when I say manufacturing, it covers chemicals, pharma, textiles, industrial goods, all of it. And Sir, just to add to CK. my question. Acha, CK. Anand Rao sir, thank you for accepting the request. Anand sir, Anand sir, आपको क्या questions है?
and we'll take it ahead. Govinda sir, please be there. अंकित तू जाना मत, तेरे को सबसे लास्ट में लूंगा. एक मिनट, चिराग भाई, हिमांशु को बोलने दे, मुझे हिमांशु को बोलने दे. मुझे गोविंदा सर से एक ही क्वेश्चन था. सर आज जो 50 बेसिस पॉइंट इंडिया में हुआ, उससे आपको कोई कोरिलेशन लगता है कि इंडिया ने यूएस से अहेड ये पॉइंट ले लिया या ऐसा मेजर कर लिया, उसमें आपको कोई कोरिलेशन लगता है कि सर? इतना ही मुझे पूछना था. आई थिंक अगर आज नहीं होता तो ये जून में तो पक्का होता था. सो आई थिंक वी प्रीएम्प्टेड दैट एंड मतलब आरबीआई ने आके अनाउंस कर दिया. बट सो दैट इज द रीजन पीपल वर अ बिट सरप्राइज्ड, बट frankly I think market were looking forward to that rate hike to happen. Thank you, sir. Thank you. So we have Anand sir over here. He is मतलब गुरु है हमारे भी. प्रभु फिर से. हाँ भैया बोलिए. बच्चों का मार्गदर्शन कर दीजिए. हम भटके हुए हैं, बच्चों को भी भटका दें, ये बोलना चाहते हो? सर भटका दो, हम आपके रास्ते पे भटकेंगे ना तो पैसा कमा लेंगे. विकास भी आया है, आपके पीछे विकास भी आया है. विकास तो आजकल ऐसा एस्केप वेलोसिटी से उड़ गया है कि आजकल दिखता नहीं है, पूछता नहीं है. तो छोड़ो, तो बाद में हम उसको साइड में बेंगलोर जाकर के उसका मन जो है उसको जीतेंगे, है ना विकास? खैर, मजेदार है. आज 40 बेसिस पॉइंट के हाइक पे हम सरप्राइज वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे कहते हैं ना. एंड गोविंद जी बुरा मत मानिएगा, मेरे व्यूज थोड़े से अलग हो सकते हैं. नहीं सर, ऑफ कोर्स आई फॉलो यू आल्सो वेरी ग्रेट. आज लोग ऐसे ही सरप्राइज दिखा रहे हैं जैसे वो 90 के दशक में भारत की कोई युवती जो है मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बन जाती थी तो वो एक एक्सप्रेशन आता था, मैं जीत गई. तो वैसे वाले एक्सप्रेशंस जो हैं रेट हाइक को लेकर के आज हुए हैं. मेरा मत गलत हो सकता है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन मेरा ये मत है कि आज का जो मूव हमने 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखा है, ये प्योरली आई थिंक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नाम की एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी होती है, आप लोग को पता होगा कि. तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह लीजिए या हेज अगेंस्ट अ पॉसिबल रेट हाइक बाय यूएस ऑफ 50 to 75 बेसिस पॉइंट, जो अब 50 बेसिस पॉइंट हो गया है आज. तो मेरा चैलेंज रेट नहीं है, मेरा चैलेंज ये है कि इन दिस हार्डनिंग रेट सिनेरियो हाउ विल वी डिफेंड वीकनिंग आईएनआर. मेरा वहां पे प्रॉब्लम है, वो मैथ बैठ नहीं रहा है. आप लोगों में से कितने जन करेंसी क्लोजली वॉच करते हैं पता नहीं, बट जो थोड़ा बहुत चार्ट्स मैंने देखा है, आईएनआर is looking headed for 83 half in next 1 or 2 quarter. अब 83 half का डॉलर आईएनआर और 7% के ऊपर की बॉन्ड यील्ड क्या तांडव इस इकोनॉमी में मचाएगी, हम आप सिर्फ सोच सकते हैं. गोविंद जी, आप डिसएग्री करेंगे इससे? नहीं सर, आई थिंक not disagreeing at all sir. While I am no expert on the technical aspects of the charting that you spoke, but हाँ सर, हो सकता है, मतलब डॉलर कैन गो अप टू दैट लेवल. डॉलर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. डॉलर आईएनआर जो चार्ट मैंने अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी एक पब्लिश की थी अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वार्निंग एट 7650 दैट वी आर हेडेड फॉर 83. It's a continuation and more what in market parlance we call as a smile. A dollar INR is on the verge of breaking out from the 2020 highs. 2020 marked the onset of COVID. आप कोविड का टॉप निकाल रहे हो, तो कोविड का टॉप लगे 2 साल हो गया. उसके बाद अगर 2 साल के बाद अगर कोई एसेट क्लास अपना 2 साल पुराना टॉप निकालता है तो ऑब्वियस सी बात है चिराग एंड अमित आर देयर ऑन द स्पेसेस, दे आर इक्वल प्रोफिशिएंट इन टेक्निकल एनालिसिस. 2 साल के बाद अगर कोई टॉप निकलता है तो चिराग क्या होता है?
Sir, sir, I think Chirag bhai rejoining. Amit, if you can अमित answer. अमित 2 साल के बाद कोई टॉप निकलता है तो क्या होता है? सर उसको तो मतलब मैं नॉर्मल स्टॉक की बात करूंगा ना तो खरीदते बैठने का चुपचाप। यहाँ पे करेंसी है, मतलब वो ऊपर ही जाएगा। हाँ तो मतलब डेप्रिशिएट ही होगा इंडियन करेंसी। यानी we'll have to shell more for the same amount of imports we'll do. करेक्ट? और साथ में आपका क्रूड भी 100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैं चिराग भाई थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हाँ, मैं जो थोड़ा बहुत पीएनएफ अभी चार्ट देखा उस पे हॉरिजॉन्टल काउंट 83 हाफ 82 97 के रेंज में आ रहा है, क्लस्टर है वहां पे। और ये काउंट मैं अपने छोटे से अनुभव के साथ कह सकता हूं कि ये शायद 2 क्वार्टर के अंदर भी अचीव हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या हम ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन की मार्क राइजिंग कमोडिटीज की वजह से झेल रहे हैं उस पे अगर करेंसी भी कंपाउंड करेगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये प्रश्न है मेरा। अमित, गोविंद जी, चिराग भाई you got the question, सर बोल रहे थे। Are we in a scenario to brace for a weak currency amidst rising rates, hardening inflation, and Sir, in that kind of a situation, what I see is कि upside is limited, downside is unlimited, and we have Rajesh bhai also. RP, if you can accept the request, it is a general discussion, so probably it won't मतलब आपके उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सर अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, आई टोटली एग्री विथ यू, वी कैन सी लोअर टारगेट फॉर निफ्टी itself. बट मेरा आज का जो सेटअप बोलता है कि भैया यहाँ जाके खरीद ले, 500,000 पॉइंट का बाउंस मिलेगा, उसमें एग्जिट कर जाना और फिर जो शॉर्ट करना है कर लेना। ट्रेडिंग वाइज आई एग्री विथ यू अमित। यस सर, सर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, मैं एब्सोल्युटली मैं अपना इंट्राडे वाले या 2 दिन का व्यू रखने वाले, बट ओवरऑल यस सर, टोटली एग्रीड। portfolio returns of last 2 years has made all of us believe that we are good investors. I disagree with 500 point bounce. क्यों आएगा bounce 500 points का? We had a bear flag breakdown और बड़ा वाला अगर 1300 points का रेंज ब्रेकडाउन आया है तो 500 points का बाउंस आने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है? 1%, 2%? Why हर्ष, when we and Ankit were discussing, we had put the same point कि भैया 16,400 अगर नहीं तोड़ता है और कल का जो लो बनता है फर्स्ट आवर में अगर सस्टेन करता है, मतलब इस 16,400 is not getting broken, and if it sustains for 1 hour over there, I'll look for a buying opportunity. I'm looking for buying opportunity only for next 2 days. I'm not carrying anything for Monday because I don't know what will happen on Monday. Ankit will also agree to it because on the data side, we are on the extreme sides of the data. When FII have doubled their shorts in a single day, and when retail, matlab client and pro have added. Ankit, if I'm not mistaken, probably we were talking the same thing. Chirag, I have sent you a request. Yeah, I agree with the 16,400 thing. Even I will look for a bounce from 16,400 if there is a support. But why 500 pounds? Is there a probability of 500 points bounce from 16,400? I will say there is only 1%, 2% probability of 500 points bounce from 16,400. 150, 200, 230 points bounce can come. That is not ruled we out. will analyze it for the whole day. Harsh? No. See, Amit. See, at 17,011, even I'll go short again. मैं भी वापस शॉर्ट मार दूंगा बाजार को. बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि भाई दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट. आई टोटली एग्री. Whatever you're saying is totally, I'm not disagreeing. But the data that I'm seeing is FII have shorted at lower levels. They have not been shorting it from very high levels. They had a very small position at higher levels. Now they have started adding short positions on lower level.
and same time clients and pro have put their money on long side at a lower level. So whoever gets tapped, we don't know. Nor me, nor Ankit, nor you. Who know? None of us knows who will get tapped. So we are just trying to Uh, decipher that data. Amit, just wanted to add a point. The surprise was India hiking rates today. Fed का सरप्राइज नहीं है. Fed तो ऑलरेडी पहले से फैक्टर्ड इन था कि 40 बेसिस पॉइंट ये हाइक होगा. जो इंडिया ने किया वो सरप्राइज था. That's why the market reacted like this. That is my personal point of view. No. For me, today's fall was definitely not a surprise. I mean, you also know that I have been No, Harsh bhai, consistently. I'm not talking about the fall surprise fall नहीं. जो move आया उसकी बात कर रहा हूँ मैं. Yeah, obviously. See, there will be some or the other news that will drive the rise or a fall. That news can be a surprise, but on charts there is always a hint. So, is the chart saying hint that okay, from 16,400 there is a likelihood of 500 point fall? That is very less likely. That is really very less likely, I would say. So Anna, हर्ष तू डेली का प्लेयर, हर्ष अपना तो डेली का प्लेयर है. आज राजेश सर, गोविंदा सर, अनंत सर है, उन लोग को सुनते हैं. राजेश सर, आपका क्या व्यू है मार्केट पे? So my view is also bearish, and until unless we're not able to cross 17,400, will be on short side of the market, because my long-term system is suggesting that we will be heading further lower. Even 16,400 can be broken in due course. It's just a matter of time. So pressure will be there. Both the indices, Nifty, Bank Nifty, are in weak zone. That crossover is already there in the system since last 10-15 days. In the Bank Nifty as well as in the Nifty, both indices are below 50-day, 200-day moving average. So which I religiously follow. So this dead cross has happened after very long period. So I'll follow my system, and it is suggesting that sell on rise, as you all are discussing. Yes, sell on rise is the market, but yes, my position I'll reverse until unless we are not able to cross 17,400 is my reversal point. उसके ऊपर ही मैं position reverse करूंगा. Otherwise, I'll remain in the short side, and I am expecting below 16,400 also. Maybe we can head further lower. Even 16,000 level can come, or below also. So sell on rise, because again this US Fed hike is going to give further more impact on the US economy also. Maybe they will see degrowth. Maybe their GDP data will be negative. So 2 consecutive negative data will again put a question mark whether they are going in recession. Because a lot of factors are going to play out across the globe as of now. And this is after 2 and 2.5 year, we have seen reverse of interest rate. So this is another cautious approach, or we can say negative trigger for the market. And Amit bhai was saying कि FI ने lower side पे short किया है, higher side पे कम position है. But again, I just wanted to add here this thing कि whether they are shorting or they are just exiting. This is the question mark. Whether they are liquidating their position or they are shorting their position. So they are creating short. Maybe it could be index or Bank Nifty could be a short position, but in the stock, what kind of selling which we are seeing now. So it may be a exit only strategy they are adopting, because they have to again move back to their all leverage position. They have to square their all leverage position, whatever they have in the emerging market. So this is what they are doing it at this moment. So short हो रहा है या exit हो रहा है? Time will tell. Rajesh bhai, it was fresh edition of shorts today by FII. Today it was fresh edition. It was 35,000 and it has come to 75,000. It's almost doubled. Rajesh bhai, doubled up होगा sir short. Yes, हाँ doubled up होगा. Rajesh bhai, Anand sir और Govinda sir, आपसे question है. Is this interest rate differential, which mostly 90% people won't understand, ये interest rate differential का तो game play out नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ की rate बढ़ गई तो हम बढ़ाएंगे, so they will get more benefit pulling out their money. एक किसी का तो disturbance है बहुत ज़्यादा.
प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, पीछे से आवाज बहुत आ रही है किसी की। तो ये सर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल प्ले आउट हो रहा है कि हम वहां से पैसा लेके आएंगे इसे एट रेट ऑफ 2%, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे एट 7% प्लस माइनस द करेंसी डिफरेंशियल। तो इज दिस IRD प्लेइंग आउट जो हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बचपन में सीखे थे सर? सर ऐसा कुछ हो सकता है? So that play can be there, but it cannot be, for very short period of time. It can be, but when there is a, sustainability of that, rate regime, then only they can take this kind of decision. Because this is first instance, so they will wait for, it requires, quarter to analyze whether it's going to remain in the same regime, whether they will again hike or something, how the currency is going to depreciate. This all, combination they have to analyze. So at least it will require one quarter to analyze, because RBI policy every 45 days they meet. तो 45 दिन तो उनको रुकना ही पड़ेगा कि अगला स्टैंस क्या रहने वाला है RBI का. So it requires that much of time period. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गोविंदा सर, राजेश सर, अनंत सर, तीनों को इन्वॉल्व करके. Charts are bearish. Charts have broken down. We see a clear sell sign here. But then there is a particular level where we will reach where fundamentally Indian markets will be cheap. We are around at 20 P something. So what will be that particular level where techno funda level will come into play if one wants to go long for a period of 2-3 years, that this is the best level to go long. So गोविंदा सर, I'll start with you first कि अगर पी क्या रेशियो पे आप देख रहे हो कि बेस्ट बाय बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को, जो चार्ट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए लेवल्स, राजेश सर और अनंत सर उस पे अगर ऐड कर देंगे सर. So around 17-18 के पी के आसपास I think that should form the level. तो अगर गोविंदा सर 17-18 का पी आता है तो आपके हिसाब से निफ्टी का वो क्या लेवल बनता है? Should be around, I'm not wrong, 15,500 के आसपास होना चाहिए. So more 7-8% downside from the current level. Could be. Rajesh sir, Anand sir, what would you add on to it? So if I go with the fundamental data setup, so earnings what we are seeing for current quarter or in last 1 year, so it's showing year on year growth, so which is giving us sign that we are growing by around fundamentally target as of now is 20,000 to 200 for the Nifty for FY24. But yes, at what level one market will be very attractive? So according to me, 15,500 is the level where if market comes, it will be really attractive in terms of price to valuation. So that would be the level. If it comes, so yes, we should be ready to buy around those levels. 15,500, I'll be ready to buy. Anand sir, CK, if I can add. अमित आनंद सर को बोलने दे, फिर तू ऐड कर. Chirag, last 5-6 years I have started using an indicator called earnings yield divided by GSEC yield. Interesting sir, go ahead. Earnings yield is nothing but 1 by PE ratio. Okay? Yes sir. So whenever this ratio is in a cell, means the broader direction of this ratio is downward. Yes, the numerator is weak compared to denominator. The numerator is moving lower faster than the denominator. Yes, numerator is weak, that's right. So that is the right time to invest in equity. Because so yields earnings yield going lower means earnings are good. तो yields नीचे आएंगी. अब rates going higher, जो अब सिनेरियो समझ में आ रही है, I believe this entire 4-5 year cycle of downward trajectory of this ratio has come to an end. जब तक चार्ट पे अर्निंग्स यील्ड वर्सेस जीसेक यील्ड वापस सेल में टर्न नहीं होता,
I will stay away. आप यूएस यील्ड्स की बात कर रहे हो कि इंडिया यील्ड की? इंडिया यील्ड यार, मैं इंडिया की अर्निंग्स हाँ को हाँ इंडिया के यील्ड से ही कंपेयर करूंगा नहीं ना। नहीं नहीं, जस्ट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, गो अहेड। हाँ, तो अर्निंग्स यील्ड डिवाइडेड बाय जीसेक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जब तक ये सेल में है तब तक इक्विटीज आर अ बाई। जब ये रेशियो बाई में टर्न हो जाता है, आई थिंक वन शुड लुक टू एग्जिट इक्विटीज एंड बाई bonds. Not that you will not lose money in bonds, but relatively the loss will be much lesser compared to equities. This is an indicator I have been following for an investment horizon of 3+ years. Fairly decent accuracy. सर आज jargon से मैं गुजराती में sorry, and this jargons lot many will not understand. So let's get into exit levels where you see that this ratio will reverse level wise. Rates reversing. We have just started to go up, yaar. Sir, if I look at the chart on a year-wise percentage way, okay, we are in a downward trend, okay. From 9 we have reached 6.5. This is just a Yes. pullback for me. I see much lower rate. 6.5 nahi, we have seen for 5.73 last year, 2020. One year swap is at 8. For me, this is just a pullback in wave 4. If I look at the long term, we are much headed lower. Agree. But for understand, when you're talking in terms of bond markets, 1 year is not long term. Economies ka long term is measured in decades and more. I said 1 year swap ratio. 1 year swap can be, 1 year swap is already affected by your rising crude. The correlation between 1 year swap and 1 year FRA on swap, both are factoring in crude. Crude is anyways today high. I don't know. Exactly. I was expecting a correction in that, but if it crosses 110 on WTI, exactly. There Now, is serious, if you remember, going to be I a started serious pain in Indian equities market. I started my discussion here on this space with raising a question about currency blowout. Right? Now, if currency blows out, now the challenge for the central banker is very clear. Do they want to defend bond yields, swap yields, or do they want to defend the currency? They can't defend both. It's difficult. आपके experience में क्या defend होएगा? I think they will defend the bond and swap yields. They will let the currency go, given that we are already having a reasonable currency war chest. So अगर उसमें 20-30% कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. So initially for the next 2 quarters, looks like from my point of view that they would be allowing the currency to go and defend the bond yields. Govinda sir, do you agree to this? Possible है सर, out होना है सर. I will not be surprised if that happens. But the Guys, only I'd like to hear on something. We are going into a lot of technical details which are fundamental. It will be little, Amit, एक second. It will be little bit difficult to digest for all the listeners, but these are important data points which are fundamental and an economist looks at, and that is not for short term. That looks into medium term and long term view, and the markets react to this because every poll what is taken in the market for a fundamental analyst, it is on basis of all these points. So if they lower their expectations, then the markets go down. If they higher their expectations, market go up. So take it with a pinch of salt. Data can change overnight, but in medium term they don't change overnight. And can I add one point here, Chike? Yes. In this scenario, 1 year swap may not be the right barometer, though it is the most traded barometer. But if you are to look from an investor perspective, you better look at a 5-year swap as well as a 5-year FRA on a 5-year swap.
सर गरीब लोगों ने समझा इतना क्यों? नहीं, कि 5 ईयर स्वैप तो पता है। Yes, yes. I understand what you said, हाँ but तो for the अगर larger आप audience, नहीं you need स्वैप to के make it in a liquid language. हाँ तो स्वैप की बात तो मैं तो इसीलिए अभी तक स्वैप अवॉइड कर रहा था, बट चूंकि आपने स्वैप की सर बात छेड़ी सर है। अनंत सर मैंने उसका ही आपको क्वेश्चन पूछा था, इज दिस IRD प्लेइंग आउट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल गेम in बीइंग a प्लेड way आउट? in a way yes, but not in the manner you would be expecting it to be favorable. It's actually playing out the unfavorable way. सो फॉर द लार्जर ऑडियंस IRD का सिंपल मतलब समझा देता हूँ आपको। IRD होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। मुझे अगर कोई कंट्री में फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका से 2% पे पैसा लेके आ रहा हूँ और इंडियन गवर्नमेंट मुझे 6% का इंटरेस्ट दे रही है, तो मैं 2% अमेरिका से बोरो करूंगा, इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा 6% पे, प्लस माइनस द करेंसी रिस्क, प्लस माइनस द जियोपॉलिटिकल रिस्क, प्लस माइनस द जियोपॉलिटिकल रिस्क। ये हमें जब हमने कॉमन ने बेसिक सीए करी थी हमें तब समझाया गया था, और ये हम गेन कैरी ट्रेड जब देखते थे, हम इतनी सारी चीजें देखते हैं। इससे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इससे नहीं समझ सकते तो आप कितनी भी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लोगे ना समझ में आएगा। प्रॉब्ली आई एम नॉट रॉन्ग। सस्ते में ब्याज पे पैसा उठाया और जहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है वहां पैसा लगाया, सिंपल है। उसके लिए आज आरबीआई ने फ्रंट रनिंग किया। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ पवन साहब ने फोन किया था ना शक्ति दादा को कि शक्ति मैं करने वाला तू भी कर ले। that was a joke, nothing more than that. Yeah, take it as a joke, but it was a clear front running by RBI. ठीक है, because they knew that they will do something, that is why they reacted before them. So if we have to react post that, क्योंकि मैंने किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि 6 से 8 तारीख तक को MPC रहेगा, मतलब अपना जो अपना RBI के जो मीटिंग रहेगा ना, ethically they did wrong. अगर they wanted to do a meet, they should have circulated. Nothing is wrong. अगर नहीं सुन ठीक है, nothing is wrong. ये एक आरबीआई का मीट हो रहा है इमरजेंसी बेसिस पे। यूएस मार्केट में हमेशा इन्फॉर्म होता है, यूरोप मार्केट में हमेशा इन्फॉर्म होता है। भाई सुबह 10 बजे न्यूज आ गया था, 10-11 बजे न्यूज आ गया था, 2 बजे वो न्यूज क्यों आया था? But the MPC meeting was going on from 2nd May. So 2nd and 4th मतलब आप बोल सकते हैं they should have informed, but तेरा आवाज से मैं पहचान रहा हूँ। 2nd को वो लोग ने मीटिंग कर दी, मीटिंग हेल्ड फॉर 1 आवर, और इससे पहले वो लोग जब 3 दिन की मीटिंग करते हैं या 2 दिन की मीटिंग करते हैं, एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते, और 1 घंटे की मीटिंग की हॉलीडे पे without informing the exchanges, which is very wrong. They should have informed the exchanges. Who should inform the exchanges? Exchange has nothing to do with RBI. There is no role of exchange in RBI. एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने का वो नहीं होता है, बट जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म होना चाहिए। कहीं पे भी इन्फॉर्म करे भाई। पहले अगर वो लोग 2 दिन की मीटिंग कर रहे हैं, लेट्स चेक द लास्ट आरबीआई मीट, 2 दिन की मीट के दे couldn't reach a solution. They said everything is accommodative, everything is good. हमारा 1 साल का टारगेट और इन्फ्लेशन का 5.25% है, और अचानक इमरजेंसी मीटिंग करते। करो इमरजेंसी मीटिंग, कौन ना बोल रहा है? यू हैव द राइट, बट इन्फॉर्म तो करो आरबीआई को, और आरबीआई के प्रेस रिलीज को करो, एक्सचेंजेस को रिलीज करो। नो वन नोज दैट इफ द फाइनेंस मिनिस्टर वाज कंसल्टिंग दो, अपना पीएम बाहर घूम रहा है। The Charter of Reserve Bank of India allows it unlimited latitude on matters of national economic importance. It is allowed, but we are now. One more thing, sir. One more thing I like to add over here. They have the right to do all the things based on the data they get on daily basis, because we are running. No, it's not about to argue on this point. Let me speak on one thing. If I have to argue on this point, what is that important data change between this 27 days or 28 days after that RBI meet? I'll tell you, steel prices are down 5,000 rupees a ton. Commodity prices are down heavily. Only the agri prices are up. Okay.
rest all commodity prices are down. So Sir, I what think was the that food emergency inflation that was they a big couldn't thing. wait for more 1 month? CK, calm down. One. Number two, No, I am calm down. in such matters, there is something called a concept of need to know, and we, as independents or individuals, don't come into that need to know. Yes, we may cry wolf, we may cry fall, whatever we want, but RBI's charter gives it the latitude to meet whenever they deem fit. And it is not a one-person decision, my dear, it's the entire Monetary Policy Committee. Sir, everything agreed what you said. If they want to do an emergency meeting, they did it. After the meeting also ended, they could have press released one thing that we had an emergency meeting That's 2 their days choice, back. yeah. They are the regulator. Why don't you understand? It's Sir, their they are the choice. regulator. That is the problem. That is the problem Chirag sir, here. Chirag sir, So Chirag sir, CK, we are please, deviating again from the topic. please, अब वो yes. regulator है, उसकी हाँ, मर्जी है. नहीं That is नहीं governed by अमित FM and that is governed by Prime Minister of India. चिराग अमित सर वो यार, हो गया, खत्म हो गया whoever सर वो. is calling me सर out, चिराग सर वो हो गया, whoever खत्म is हो गया. calling me out, if he is Please, the regulator, he should be first on the forefront to say that they held a meeting. मार्च 2 को अगर सॉरी मई 2 को अगर मीटिंग एंड हुआ, डे एंड हो गया, रात को एक प्रेस रिलीज ले सकते थे कि आज एक मीटिंग एंड हुआ. चिराग सर प्लीज, हो गया ना सर. इट इज डन एंड डस्टेड विद. हाँ, It is it's done done and and फॉरवर्ड dusted. लुकिंग. dusted. क्या कर रहे हैं? Why didn't the press release come end of the day that the regulator had an emergency meeting? They did wait for the country. उनको जो सही लगा देश के लिए वो किया. उनको लग रहा है कि भाई चिराग एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है. चिराग सुन, एक कंडीशन ऐसा आ सकता है. If everybody can mute their mic, there might be we are looking about food inflation. Why not about food shortage? There might be food shortage. There is no food inflation. There might I'm be telling food you. shortage also. There is no food shortage. भाई ये अपने को लगता है PDS is giving everyone food. जितना चाहिए उतना PDS में food मिल रहा है. Sir, disagree, sir. Chirag sir, now as a farmer I can tell, last few days we have had a massive hit in terms of productivity. What we were thinking is coming for our wheat and other things. So please, there can be n number of issues. What I'm saying is it is done and dusted with. There is no point deviating I from the topic understand right it is now. done and Please dusted. finish it. See, I'll tell you a thing why I am irritated. Okay, I But track this is not a forum to be irritated or showing No, your let irritation. me finish. I track global markets. Okay, I track commodities very closely. So whenever something such happens in any country, they inform me in advance. RBI has not done that. If even some speaker speaks in any country, it may be US, Europe, anywhere. Sir, Okay, advance चिराग 4 घंटे पहले information बोल दिया था 2 बजे. Sir, चिराग simple 4 घंटे request पहले to you, आ गया Chirag था. sir, please understand. 4 घंटे Amit sir, पहले 4 घंटे पहले आ गया था कि भाई 2 बजे दादा बोल के आएंगे. वो दादा बोल के आए, अपना जो उनको बोलना था decision बनने के बाद they already voted about it on the second और बाद में बोला कि हम प्रेस रिलीज करने वाले हैं. अगर डिसीजन हो गया था तो दो रात को ओवरनाइट वो मार्केट एंड हुआ, उसके बाद रात को अनाउंस कर देना चाहिए था कि हमने एक बीच में हॉलीडे का क्यों वेट करना है और आके इतना बड़ा स्पीच क्यों देना है. मार्केट गैप डाउन होता था, आई वुड एक्सेप्टेड दैट गैप डाउन. तो ओवरनाइट डिसीजन हुआ, बट जिस दिन वो डिसीजन लिया उस दिन क्यों नहीं अनाउंस शांत हो जा भाई. मीटिंग 2 तारीख को हुआ, इसमें डिसीजन लिया गया. wanted to add one point here. नहीं एक By सेकंड, today's RBI decision, लेट मी फिनिश. मीटिंग 2 तारीख को हुआ, उसमें डिसीजन लिया गया कि 40 बिप्स हाइक होना है. तो अगर मार्केट एंड होने के बाद रात को प्रेस रिलीज कर देते थे तो सब ठीक है, गैप डाउन होने वाला है, एक दिन बीच में हॉलीडे मार्केट का, जो भी है मार्केट डाइजेस्ट कर लेता था. बट दे वांटेड टू ट्रेड इट इन लाइव मार्केट. आई एम टेलिंग यू, दे आर फ्रंट रनिंग द मार्केट. यू कैन रिकॉर्ड दिस एंड से Chirag, okay, Chirag, one they thing, one wanted thing. to front run the market. Chirag That's sir, why they please try said to stop. One thing. Please, enough of यार it, Chirag मार्केट sir. गैप Please डाउन हुआ understand. नहीं है.
वो तो अच्छा है ना यार, किसी का लॉस नहीं हुआ, तुम स्टॉप लॉस भी काट सकते हो यार वो न्यूज पे, वो तो अच्छा हुआ यार, ये तो अच्छी बात है ना यार, पब्लिक को लॉस नहीं हुआ ये न्यूज की वजह से, गैप डाउन हुआ नहीं तो। भाई देख, प्रॉफिट और लॉस अपने भाई बिजनेस का हिस्सा लॉस है। नहीं हुआ वो अलग बात है, वो लोग ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मीटिंग नहीं हुआ है। तो एक काम कर, सुन, यहाँ फोरम पे बोल के कोई मतलब नहीं है, पीएमओ को टैग कर, शशिकांत दादा को टैग कर, पीएम एफएम ऑफिस को टैग मैं कर, तेरे को ही और टैग करूंगा, तू मेरा सीए है। हाँ मैं तेरे को उसको ही टैग रीट्वीट करूंगा, तू मारूंगा, मेरा सीए, अनंत सर सब को भी कुछ करना। लड़ेगा। हाँ मैं पक्का रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। अमित भाई, एंड कमिंग बैक, yeah, आरती I सर just बोलिए ना। wanted to add here, आज की आरबीआई मीटिंग के आरबीआई डिसीजन के बाद देश टू की टेक अवे, एक तो ये कि जो उन्होंने अकोमोडेशन किया था by not hiking the rate in the last policy in April, so it's a withdrawal of that accommodative policy. First thing. Second is there is a situation which is beyond their control, so it's the urgency to give this rate hike, because now they have again chance at 7 June to give another rate hike, because Fed cycle is going to change, so it's going to give further more impact. So now again we should be ready for 7 June policy also, and another rate hike would be there, because ये जो policy में आज जो किया है, राजेश भाई, it's a राजेश भाई, withdrawal of that accommodation. अमित इजाजत चाहता हूँ, सोने जा रहा हूँ सर। आप आज जुड़ जाते हो ना, आप एक मुझे व्हाट्सएप का मैसेज कर दोगे ना, आप ये ट्वीट पे मुझे मैसेज मत किया करो, आप व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो प्रभु आपको सुन के है ना, मैं आई टेल अबाउट अनंत सर। अनंत सर इज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 20-25 years इंस्टीट्यूशनल डेस्क, मतलब हमें जितना आता है ना, हम इनके है ना 10% भी नहीं, ये जब बोलते हैं ना हम सिर्फ सुनते हैं। मैं 4 बार इनको लाइव सुन चुका हूँ, मैं कभी इनसे फोन पे बात करता हूँ ना, तो बोलते हैं ना कि वो कृष्ण अगर गीता बोल अनंत रहा सर था। को एंड करना है तो शायरी के बिना एंड नहीं कर सकता। अरे नहीं चिराग, आज नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट। मैं अनंत सर का यही बोल रहा हूँ, मैं આજે अनंत તો सर છે का ને यही बोल रहा આરબીઆઈ हूँ। ખંજર ખોઈજો છે બેક પર, તો એના માટે કંઈક જોઈશે। आज नहीं। Rajesh, thanks a lot. I enjoyed listening to you. Govind, same in your case. Harsh, nice, listening to you as well. नहीं Everybody, नहीं, किसी को थैंक्स ना बोलो, आपने ज्वाइन किया है तो हम आपको थैंक्स बोलते हैं। मत जाने दो अनंत सर को शायरी के बिना, मत जाने दो। अनंत सर का मैं बोल रहा हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूशनल डेस्क हैंडल करते थे, आज भी अंकित करते किधर हैं। गया? अंकित चला गया तेरी बातें सुन के, तेरी बात सुन के भाग गया। चलो मैं भी चलता हूँ, इजाजत देता हूँ। 5:30 बजे उठने फिर भी मैं रुका हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, नहीं क्योंकि अनंत सर जब बोलते हैं ना, आरपी सर, आरपी गो अहेड। चलिए, गुड नाइट। No. So my point is, because in the last policy they were very accommodative, and they have not increased the rate hike, because it was clear message by US economy and US Fed that it's a need of our, like one needs to look at the rate cycle, and India was holding up. So RBI ने आज वो जो मिस्टेक लास्ट पॉलिसी का था, आज रिकवर, आज इसको चेंज किया स्टैंड, और नेक्स्ट रेट हाइक इज गोइंग टू कम इन द 7 जून ऑल्सो। सो उसका इम्पैक्ट जो मार्केट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी कैन हेड फर्दर मोर लोअर, सो दैट कुड बी द सिनेरियो इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम फ्रेम। तो हो सकता है 16,000 के लेवल को तोड़ेंगे हम, उसके नीचे भी जा सकते हैं। सो दैट्स द थिंग वन नीड्स टू कीप इन माइंड। आरपी सर, मतलब वी आर इन द साइकिल ऑफ रेट हाइक्स, नॉट another rate hike is more evident, like yes, another rate hike will come. I totally agree with you, I totally go with your point. अगर 1 year swap देखे तो ऑलरेडी 8 पे है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ 75 बिप्स मोर। Yeah, so maybe another rate hike of 50 bips would be there in the next policy, and then they may have a pause, because then monsoon and everything will be there. Govinda sir, so you they can will review all this situation, discussion. how the monsoon is going to play out and all this thing, and maybe that could be a pause. But yes, in this financial year, 75 bips rate hike will be there. So we'll cool off something. Himani is a speaker. She's since a long time.
यस हिमानी प्लीज, वो भाग गई अभी हिमानी। Sir, वो she's चली gone. गई, I think वापस she आ just जाएगी। Can I connected. ask a question to RP sir and But Govinda sir, or anybody can answer? Can I? Yes, yes, go ahead. भाई फटाफट पूछ, हाँ इतना क्वेश्चन ना पूछा करे, फटाफट क्वेश्चन पूछ ले। जैसे चल सब चल रहा था। गोविंदा सर इज Sir, बैक. RP sir, now see, now that the cycle has reversed in terms of interest rate. Till now we were stabilizing. Now that curve towards higher interest rate is coming. So can we say now, earlier we was the debt of a company was not mattering for say past 1 year to us. Now that the interest rate is increasing, the debt cost of debt is increasing. So do you think we should be looking more in terms of companies with who are debt free or have lesser debt than somebody who has more debt on it? रणविजय, इफ आई कैन आंसर इट, Yeah. सिंपल समझो, कंपनी के अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, forget about debt, they take debt for a purpose. If they are able to repay their debt, they are able to properly plan their capex, they are able to increase their sales with that capex. Why don't you invest in that company? Capex will only come with, either there are only two ways to finance a company, either by way of equity, either by way of debt. Debt is cheaper compared to equity. So if he's getting, say for example, Tata Motor is over there, they are taking debt, let's say 7-8. Sir, your voice is gone, or I am not able to speak. Here. Amit sir, your voice. Komal ma'am, सुन रहे हैं आपको? okay, let him reconnect, Ranvijay. Yeah, In the yeah. meantime, we have other people who've joined as speaker and they have questions. So maybe Rajan, you can go ahead. रणविजय, अभी आवाज आ रही है? Yes sir, yes sir. तो आप एक चीज पकड़ो, if a company is able to repay the debt with interest, जैसे हमने आज टाटा स्टील में देखा या और भी 2-3 कंपनियों में देखा, they have started repaying their debts have been reducing, so that is why their profitability will increase. डेप्रिसिएशन पार्ट बैलेंस शीट से हटा दो, वो कोई मैटर नहीं करता, आप उसका कैश प्रॉफिट देखो, भैया कैश प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर वो कैश प्रॉफिट बना रहा है कंपनी, उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करके बैठो ना, प्रोस्पेक्टिव रखो कि भैया मुझे एटलीस्ट 2 या 3 साल उस कंपनी को रखना है। अगर वो कंपनी डेप्ट रीपे कर रही है, सेकंड एस्पेक्ट पूरा इंटरेस्ट रीपे कर रही है, उसने जरूरी नहीं कि इंडिया में 7% से लोन लिया, 8% से लोन लिया, उसने हो सकता है जापानीज से लोन लिया हो, जैसे मुकेश भाई करते हैं। मुकेश भाई 1% पे या 2% पे जापान से लोन ले आएंगे, कहीं चाइना से लोन ले आएंगे, कहीं यूएस से लोन ले आएंगे, और यहाँ आके अपना वो 2% कहीं और लगा के 5% का डिफरेंशियल करके, जो हम IRD की बात करते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल उनका कभी वो बुक में है ना, वो भी चेक करो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है एक चीज, इनकम फ्रॉम क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट, कोमल उसको क्या बोलते हैं बेटा, जहां अपन ये अपना ऑपरेशन उसमें रहता है, ट्रेजरी, वो ट्रेजरी इनकम, ट्रेजरी नहीं, ट्रेजरी इनकम, उसका ट्रेजरी इनकम देखो, वो ट्रेजरी इनकम में इतना पैसा क्यों कमा रहा है, क्योंकि वहां से सस्ता लेके आ रहा है यह पैसा। ये तो हमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट बताता नहीं कभी चार्ट का, हम बात करेंगे ये ईपीएस है वो है, कभी ट्रेजरी का इनकम देखा आपने कि भैया ट्रेजरी इनकम में वो 2500 करोड़ कमा रहा है, 3-3 हजार करोड़ कमा रहा है बैठ के, वहां से लाया यहाँ दे दिया, या बैंक की एफडी कर दी और बैंक की एफडी में उसने अपना गेम कर दिया। ये आपको कोई है ना, कोई एक्सपर्ट अगर सिखा दे तो मुझे बता देना, किसी ने ट्रेजरी इनकम देखा है कंपनियों का? कभी आपने ट्रेजरी इनकम के बारे में सोचा? ट्रेजरी मींस दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, दे विल बी इन्वेस्टिंग इन they'll be investing in mutual funds, they'll be investing in bonds of other companies also. Say a company उनको 10% इंटरेस्ट दे रही, जिनको उन पे ट्रस्ट है कि भैया ये फॉर एग्जांपल इंडिया बुल्स है, रिलायंस को लगा इंडिया बुल्स डूब भी गया ना तो मैं इसको तो खरीद सकता हूँ, तो हमने कभी उस पे जाके सोचा भी नहीं। ये आपको कोई है ना सिखाएगा, ये सिर्फ
एक ही बंदा सिखा सकता है, मैं, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट इतना अच्छा पढ़ना आता ना 18 साल में। किसी ने आपको ये चीज सिखाई कि ट्रेजरी का इनकम देखो क्या ना, उनका ट्रेजरी इनकम देखो उनका, वो ट्रेजरी इनकम इतना बड़ा बना लेता है ना, वो ट्रेजरी इनकम के लिए मैं पैसा दे दूं उनको, वो ट्रेजरी का इतना बड़ा गेम कर देते। ट्रेजरी मतलब जो उनके पास रोकड़ा पड़ा है, जो उनके पास कैश बैलेंस पड़ा है, वो उसको इतने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा सेगमेंट रिजल्ट पर। किसी ने कभी चेक किया जाके? I can guarantee 99.99% of all the people who follow me and all the Twitter fundamental analysts doesn't even knows about it. भैया कोई फॉलो ही नहीं करता ना, मैं तो वो चीज फॉलो करता हूँ कि भैया ये पैसा कहाँ से कमा रहा है, इसका बिजनेस। मैं अगर रिलायंस के लिए बुलिश होता हूँ ना फॉर लाइफ टाइम, जब तक मुकेश भाई है, बाकी क्या होगा बाद में मुझे नहीं पता। सो थिंक ऑन दोस एस्पेक्ट्स ऑल्सो। जब रतन टाटा सर है ना, मतलब जिस दिन रतन टाटा सर को कुछ हो गया ना, उस दिन मैं टाटा के बारे में गलत सोचूंगा। रतन टाटा सर मतलब ही इज आइकन फॉर अस, सो नॉट गेटिंग एक्सटेंडेड टू दिस, बट आप ये चीजें भी देखना शुरू करो। आप ये मत देखो उसने ऑपरेशन क्या किया, उसने ये क्या किया, अदर इनकम का सही, अदर इनकम उसका ट्रेजरी इनकम देखने जाओ। किसी ने आज तक ट्रेजरी इनकम के बारे में सोचा? One question. So, ये जो treasury income you are saying, but not every company has it. Very limited companies has this treasury income in their balance sheet. So, again, one have to be choosy about. So, जिसके पास cash rich company है, जिसके पास debts बहुत ज़्यादा नहीं है, so only those company will have this income which is significant. वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपका काम होता है। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आई एम ओनली अ गाइड। सी, पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी बोलते हैं मैं आपको गंगा जी पे आरती करा दूंगा, मोक्ष तो आपको मिलना है तो आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, आपको 1001 रुपए देने पड़ेंगे, नारियल चढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी स्वर्ग पाना है, इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू नीड टू डाई, मतलब उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन ऐसा है कौन नहीं है। विदाउट डाइंग यू विल नॉट गेट हेवन और हेल, otherwise you will only stay on this planet Earth. तो ये आपको एफर्ट ढूंढने पड़ेंगे भैया, किसका ट्रेजरी इनकम भी आ रहा है, बड़ी कंपनी रहेगी जिसके पास कैश फ्री रहेगा, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, उनके पास कैश होता है, इसके लिए बायबैक करके चले जाते हैं अपने शेयर। आज लोग 4,500 में बेच के चले गए, टीसीएस का प्राइस 3,500 चल रहा है। वो रतन टाटा पागल लगता है आपको कि 4,500 रुपए दे रहा है, जो शेयर 3.5 में चल रहा है वो मार्केट से खरीद लेता ना, आपको देखे गया ना, वो मूर्ख नहीं है, वो हमसे है ना बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब हम तो उसके आगे है ना, एक पैसा तो बहुत दूर की चीज है, एक पैसे का भी अगर 1 पैसा होंगे ना तो शायद हमारी कुछ जिंदगी बन जाएगी। तो रतन टाटा सर कुछ सिखाते हैं या मुकेश भाई कुछ सिखाते हैं या कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री कुछ सिखा रहा है, हमें उससे सीखना चाहिए। हम देख के जाते हैं कि स्टॉक का प्राइस आज क्या है, हम ये नहीं सोचते कि स्टॉक क्यों खरीद के गए, हम ये सोचते कि कल सुबह मुझे क्या मिल जाएगा, 6 महीने में क्या मिल जाएगा। अरे वो उसका प्रोस्पेक्टिव ये है कि भाई 6 साल बाद तुझे इतना पैसा मिलेगा, वो हमें नहीं सोचने का है। वो उसको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, मतलब आज के टाइम में ना मार्केट को है ना लॉन्ग टर्म हो गया 1 साल, जबकि एग्जैक्ट मार्केट का लॉन्ग टर्म होता है एटलीस्ट 7 से 10 साल। 10 साल का पेशेंस है। आई कैन बेट 99.99% पीपल डोंट इवन हैव दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। जब मैं बोलता हूँ भाई 10 साल के लिए रखना, 10 साल कौन रखता, मैं रखता हूँ ना। मेरे 15 साल से जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं ना, अभी वो ऐसे रिटर्न्स पर बैठे हैं ना, मैं बेचता भी नहीं उनको, मेरा आज भी उनमें एसआईपी जाता रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, बिकॉज दोस आर कंट्रोल्ड बाय माय वाइफ नॉट मी। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा मार्केट के लिए कि हमें व्हाट इज माय एज, व्हाट आई वांट टू अर्न इन माय लाइफ, तभी पैसा बनेगा। आप सिर्फ आ जाओगे, आज ट्रेडिंग कर ली, एक कॉल खरीद लिया, एक पुट बेच लिया, उसमें पैसा नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही पैसा बनेगा कि आपको लॉन्ग टर्म का मतलब एटलीस्ट 10, 20, 25 साल का सोच के बैठो कि भाई 25 साल मुझे पैसा ही नहीं निकालना, मैं हर फॉल में खरीदती रहूंगी, खरीदता रहूंगा, हर ऊपर जाएगा तो 50 में से मैंने 10 भी बेच दिया तो मेरा कॉस्टिंग कम हो गया, मेरे पास 10 का पैसा वापस आ गया, तो मैं 12 क्वांटिटी खरीद लूंगा। ये कभी आपने सोचा है? हम इतने साल बाजार में धक्के खा खा के है ना ये चीज सीखे कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ चीज होती है, दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कोई ना पकड़ता, कोई ना समझता, हमें है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए।
कि भैया आज किया ना ट्रेड, आज का आज पैसा मिल जाए और कल सुबह में मर्सिडीज खरीद लूं। ऐसे मर्सिडीज नहीं आती। मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज नहीं, मेबैक आएगी, मेबैक नहीं, आपका पर्सनल हेलीकॉप्टर भी आएगा। पेशेंस रखोगे तो आएगा, वरना ना आएगा। Well said. I think Mahesh is raising his hand. उसको कुछ question है. He has DM me couple of times. Mahesh, you want to go ahead? Yes, thanks for giving the chance. मैं जस्ट एक पॉइंट ये करना आपको, जैसे चिराग सर ने बोला ना कि एक इंस्टेंट उन्होंने रेट हाइक किया, बट इफ यू रिमेम्बर 4-5 years बैक रघुराम राजन ने भी ऐसे ही सुबह आके विदाउट मीटिंग करके रेट डिक्रीज किया था। एक सरप्राइज दे डिक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट या ऐसा 40 बेसिस पॉइंट से दे रिड्यूस द रेट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग जो बोल रहे हैं कि रेट हाइक हुआ ये वो, if you see this rate hike is just a reverse back of April which was done after COVID. Okay, and everybody is saying that June 25 basis point will be there. I don't feel 25 basis point will be there in June. Definitely not. With condition how the war goes and how the crude price follows. Second. Third is see, Indian market 50% is based on the global scenario. If you whatever you say, but it is based on global scenario. What your chart says, whatever it says, but it is followed by all the global scenarios and especially the commodities and especially the crude and gas prices. So I will not be surprised if you see tomorrow big gap up. Whether it will sustain or not, that is different. Okay, I'll add one more point over here. Since we are talking geopolitical, and I'm following that news from very long time. 9th May, रशिया है डे समडे, मतलब कोई इंडिपेंडेंस डे या कुछ तो उनका स्पेशल डे है सर, विक्ट्री डे। हाँ, विक्ट्री डे 1945 का है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस सर, विक्ट्री ओवर जर्मनी। हाँ, विक्ट्री ओवर जर्मनी। तो 9th को कुछ तो बड़ा होगा। क्या होगा? Market will fall, market will rise, none of us knows. But and the news that I'm following, I try to follow all the channels, who is telling truth, who is telling false, ये हमें पता नहीं। मैं तो आज तक रशिया के कोई चैनल भी नहीं पता थे, वो भी फॉलो करता हूँ। 3 घंटा बैठ के वो देखता हूँ कि भैया कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और ये सब है ना, मार्केट ऐसे वॉर टाइम पर है ना, इंफॉर्मेशन कम मिलती है, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी। खुद ही अपना एक टैंक उड़ा देंगे, बोलेंगे हमने रशिया का टैंक उड़ा दिया, उसपे जेट का मार कर देंगे। वो खुद अपना टैंक उड़ा देंगे, बोलते हमने पुतिन का ये जेलेंस्की का उड़ा दिया। अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि हमारा कोई वहां सोर्स नहीं बैठा। जो न्यूज चैनल बोलेगा हम पकड़ लेंगे। मैं CNN देखता हूँ, BBC देखता हूँ, जितने न्यूज चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ प्रॉपर न्यूज निकले, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकले। वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, बट 9th को कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि वो उनका डे है। उस दिन पुतिन है ना, देखो सर being a countryman, cause Russia have always supported India. Salve with Putin। और एक चीज समझो, आपके पास नेटो के खड़ा है, पाकिस्तान में नेटो ने लगा दिया, चाइना में नेटो ने लगा दिया, चाइना नेटो को भी अलाउ भी नहीं करेगा, नेपाल में नेटो ने लगा दिया। तो भैया इसके आगे बढ़ते हैं, राजेश सर है, गोविंदा सर है। चिराग एक सेकंड रुक जा, चिराग एक सेकंड रुक जा। नहीं, तो उसमें हमें रिस्क रहेगी, हमें नहीं पता है। तो वी डोंट हैव एनी आइडियाज कि 9th को क्या होगा। सुना अमित, गोविंदा सर है, राजेश सर है, आगे बढ़ते। पैसा कहाँ बनेगा अब नेक्स्ट? दोनों के लिए क्वेश्चन। मैं तुझे सिंपल बोलता हूँ, 16,400 आए, 16,150 का स्टॉप लॉस लगा, खरीदना शुरू कर दे। और बोल। अभी फिलहाल डाउ 600 पॉइंट अप है, तो कल क्या गैप अप होगा मालूम नहीं है, बट भाई मैं तो स्टार्टिंग में बोला का छोड़ दो, नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए पैसा कहाँ बनेगा। लेट एवरीवन एंजॉय। अंकित भाग गया है, उसको बराबर पकड़ूंगा क्योंकि आज उसके ट्रेड्स डिस्कस करने थे। ओके, बट राजेश सर, गोविंदा सर, पैसा कहाँ बनेगा?
रिलायंस खरीद ले, sector specific I can quote sugar, textile. These two sectors are looking attractive, as well as cement. Three sectors which I am focusing on the long side. If you are allowed to give any stock specific recommendation, go ahead. सर चिराग सर वो रहने देते प्लीज. क्या हुआ? सर वो रहने देते हैं. सेक्टर इज मोर देन इनफ विद राजेश सर. वो इसलिए नहीं बार नहीं, बार आते राजेश भी नहीं सर है. के साथ मैं डेली ईटी नाउ स्वदेश पे शेयर करता हूँ स्क्रीन. हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं. सो इफ इज अलाउड ऑन दिस बेसिस ही कैन शेयर दी स्टॉक. राजेश सर का Right ध्यान now I मेरे am ऊपर not भी in जाता रहेगा, पर मेरा position. ध्यान उन पे जाता है. Right now I am not in position to share some stock ideas, but yes, sector specific I can be bullish on this. Like I can say, like I am bullish on sugar, cement, and textile. These three sectors which I am focusing on. And fourth one, for short to medium term perspective, automobile is another sector where one can buy and accumulate. So not for trading point of view, but yes, for buy and accumulate, automobile is another sector which we are focusing. So I'll go to Govinda sir now. Govinda sir, Rajesh sir said he's bullish on cement sector. Okay, but we have a very important event happening. Holicom is selling its stake in Ambuja Cement in ACC. They are trying to exit the India market. How would you try to analyze this or take it? Why are they trying to exit an profitable business which is going to grow? So I think in the overall scheme of their global things, India is a very small part. It does not fit the bandwidth that they put in. Uske comparison mein, it doesn't form a significant portion for them. That is the reason they are exiting. But you should also look at the brighter side of it. The buyers are lining up, for those assets. It's a significant size of portfolio that the buyer will get immediate access to, and the kind of buyers who are entering, who are at least trying to bid for it. नाम आप सब नहीं पढ़े हैं. They are all going to be long-term owners of it, and I'll ask the question in a different way. We know Adani, JSW, all are the buyers. Names are coming up. Is this going to be a steal deal for them, that they are going to buy it at the right price, right valuation, which will give them long-term profits? Absolutely. So we can bet on that. Absolutely, we can. I will, at least. I don't know about others, but I will definitely. So ACC or Ambuja, which you will bet more on? दोनों ले लो सर, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या टारगेट लगता है उसमें? 1380 है, 2001. सर फ्रैंकली मैं अगले 5 साल के साइकिल के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो रियली हैव नो व्यू, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ both these stocks be at least 3 or 4x from where they are today, and at whichever price the buyer comes in, I will not be surprised if in the next 5 years these stocks go for 3-4x. So for every listener, I would like to reiterate, fundamental view is 3x 4x up. तो अगर अंबुजा 380 पे या 360 पे भी मिलता है, ले लो. 3x 4x 5 years में मतलब 1000 के ऊपर का टारगेट होता है. Go ahead for it. I'm just reiterating what Govinda sir said, and I trust him totally on his fundamental views for long term. And frankly, don't just go by what I am saying. Market में आप movement देखिए. Much more renowned investors are putting their money on the sector. होता है हमेशा, but generally long term view गलत नहीं जाता. Yeah. आप जैसे लोगों का. मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा and very well acclaimed investors like Radhakishan Damani is betting heavily on the sector. सर मेरा एक ये क्वेश्चन है. राधाकृष्ण दमानी ने इंडिया सीमेंट में 15% तक स्टेक लिया था.
Okay. Why didn't he go for an open offer, increase it about 15%, and try to take control of the Chirag country? bhai, he's right now sitting at around 24.9%, if I'm not wrong, between him and his other entities. 24 है कि 15.4 है? सर मुझे जहाँ तक पता है 24.9 है, just below the trigger of open offer. Chirag, I'll add over here. Open offer, the basic norms of SEBI have changed from 15% to 25%. As simple as that. पर उन्होंने अभी इंडिया सीमेंट में थोड़े शेयर्स भी सेल किए थे, वो ब्लॉक डील में आया था. I am wondering why he didn't go for an open offer. भाई 25% मिनिमम हो गया है अभी, not 15%. जो पहले चलता था ना 15%, वो 25% पे आ चुका है. That is the basic math provided by SEBI. Govind sir, other sectors you are looking at? So I fully agree with Rajesh ji. All the sectors that he mentioned, I am actively tracking them, actively investing in them. And the only others that I would add to them would be chemicals and pharma. आज दीपक नाइट्रेट के रिजल्ट्स आए थे, अच्छे थे. थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्जिन्स पे given the inflation that we are seeing, but that is something that I am tracking कि how much of inflation are they able to absorb themselves and how much are they able to pass on to their customers. So उनके margin profile को अगले 2-3 क्वार्टर तक थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, but I think fundamentally these are good businesses to own for the long term perspective. Indirect way or direct way, if you want to name any stock chemical sector में which will outperform? I can't, Chirag bhai, I'm sorry. Indirect way. मैं तुझे बोलता हूँ, सुमितो केमिकल पकड़ ले, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, 420 के नीचे का स्टॉप लॉस रखने का, बाय कर ले. गोविंदा सर, केमिकल नेम? Focus on clean chemistries and contract manufacturing, CDMO stocks. सर ये है ना गोविंदा सर, टू बी वेरी फ्रैंक, अब क्लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, शायद हम गधे लोग हैं, हमें समझ में नहीं क्लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. आसान भाषा में समझाता हूँ. क्लीन केमिस्ट्री ये होती है बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो आज तक लोग वेस्ट में फेंक देते थे. क्लीन केमिस्ट्री इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, उसे भी यूज किया जाता है, या बाई प्रोडक्ट पानी निकलता है जिसे बेसिकली ट्रीट करके फिर से यूज किया जा सकता है. सर हम फंडामेंटल वाले नहीं हैं, हम चार्ट वाले हैं, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये क्लीन कंपनी है, ये अनक्लीन कंपनी है? सर कंपनियां खुद बताती है, सर कंपनियां खुद चढ़ के बता रही है आज के मार्केट में. थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और खाली कंपनी के बोलने पे नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा इंडिपेंडेंटली देखना पड़ता है कि वाकई में वो क्लीन केमिस्ट्री है. थोड़ा हम जैसे गरीब लोगों को समझे वैसा बताओ. I think Amit, one more thing, we should do one space specifically, focusing more on fundamentals, because हम लोग technicals पे तो तकरीबन रोज बात करते हैं. We should invite Govinda and Rajesh sir and have a space dedicated towards fundamentals. राजेश सर है ना फंडामेंटल ना है. राजेश सर अपना चार्ट पोस्ट करते हैं, टेक्निकली ये दिखता है. राजेश सर को मैं जानता हूँ, वो फंडामेंटल बात की बात करेंगे, वो रोज सट्टा देंगे. मैं भी टीवी पे देख के उनको खुश होता हूँ. हाँ, फंडामेंटली बात कर रहे हैं. अंकित किधर गायब हो गया यार? अंकित को ढूंढो. अंकित तेरे पीछे चला गया. राजेश सर आके है ना ट्रेड देंगे. मैं पूछता हूँ इसमें फंडामेंटल का आपका इन्वॉल्व हुआ? बोला ट्रेड है, फंडामेंटल हुआ. हाँ, तो उनका फंडामेंटल का हुआ, वो तो चार्ट के बेसिस पे फंडामेंटल पढ़ रहे हैं. मैं आरपी मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम. भाई हम चार्ट वाले, अब कोई बोलेगा ये क्लीन एनर्जी पढ़ने का, ये पढ़ने का, हर सर में एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगे, क्लीन एनर्जी क्या होता है? रनु जी पूछेगा सर क्लीन एनर्जी क्या होता है? भाई हमें नहीं समझ में आता क्लीन एनर्जी, हम उल्लू के पट्टे उस फील्ड में. आप चार्ट बोलोगे ना, हम चार्ट निकाल लेंगे, हम पूरे दुनिया के चार्ट निकाल लेंगे. आप सिर्फ स्टॉक का नाम देना. मैं क्या बताऊं? केमिकल स्टॉक्स नेम बोलो, केमिकल स्टॉक्स नेम बोलो, और गोविंदा सर को यस और नो बोलने को लगाते हैं. नहीं सर, मैं आपके यस और नो का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. नो रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक, बट
एक कंपनी है, थोड़े टाइम पहले लिस्ट भी हुई थी, आई थिंक 1.5 साल हुआ है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज नाम से। इस कंपनी को मतलब इसका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होगा उनके वेबसाइट पे, आप जाके देखिए। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज क्लीन केमिस्ट्री। उसके लिए मैं आपको पढ़ने बोलूंगा वो। एंड गोविंदा सर, लोग मुझे बोलते हैं ना, एक सेकंड रणवीर जी, एक सेकंड रुक जा, चिराग एक सेकंड रुक जाना, कोमल एक सेकंड रुक जाना। लोग मुझे बोलते हैं मैं स्पेस क्यों नहीं रिकॉर्ड करता। मेरा एक ही कारण होता है, कल को किसी ने कुछ स्टेटमेंट लेके स्पेस रिकॉर्डेड स्पेस में से सेबी की साइट पर डाल दिया कि तो ऐसा बोल के गए थे। सिंस वी ऑल आर अनरजिस्टर्ड, हम नॉर्मल जो हम ट्रेडर हैं, हम भी वो ट्रेड लेते हैं, हमारा भी स्टॉप लॉस फिगर होता है, इसके लिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता। मुझे रिकॉर्ड स्पेस करने का जरूरत नहीं है। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, सिंपल बोलता हूँ। आपको सुनना है लाइव सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी जिंदगी में। तो मैं इसके लिए ये स्पेसेस रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। मैं ना ऑप्शन की, ना किसी की, ना कोई ऑप्शन, सॉरी, कोई भी ये स्पेसेस रिकॉर्ड नहीं करने वाला। आपके पास टाइम नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं। आपको 10 बजे सोना है, 10 बजे सो जाओ, फिर आके मुझे गाली दो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। भाई मेरा पंचायत नहीं है उस चीज में। आपको अगर आप अपना टाइम नहीं डिवोट कर सकते तो मेरे पास आपके लिए एक सेकंड नहीं है कि मैं आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए करूं। We have learned derivatives in our schools, okay, 12th standard 11th में। तो अभी अपन है ना रिवर्स क्वेश्चन डालेंगे राजेश सर पे, ओके सर। एक राजेश सर, से गोविंदा एक सर, चिराग सर, छोटा सा। गोविंदा सर, आपने सीडी क्या बोलते, क्लीन साइंस एंड क्लीन केमिस्ट्री, सीडीएमओ, राइट? ओके, थैंक यू। राजेश सर, गोविंदा सर ने जो स्टॉक्स इनडायरेक्ट वे में बोले, आपके नाम पे कोई ध्यान में आता है? मुझे लक्ष्मी केमिकल काफी अच्छा लगता है, केमिकल स्पेस में इस पे यही ध्यान बात रखा है, जा सकता है। ध्यान दो इधर। यस सर। और दूसरा कौन सा स्टॉक? नोसिल पे फोकस किया जा सकता है। नोसिल एक स्टॉक है, वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो दीपक नाइट्राइट का सेटअप अच्छा है। आई डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट टुमारो, बट दीपक नाइट्राइट अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में नोसिल एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये दो स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंटिन्यूसली वी आर रिकमेंडिंग दिस स्टॉक्स whenever opportunity comes on the chart, so yes, it's always on our buy list. मैंने राजेश सर आपका स्माइल देखा और गोविंदा सर आपका भी स्माइल देखा इस पे। और कोई स्टॉक हो? दीपक नाइट्राइट, लक्ष्मी केमिकल है, SRF पे क्या व्यू है? सॉरी चिराग भाई, मेरा स्माइल स्टॉक के नाम को सुन के नहीं था, आपके तरीके को सुन के था। चिराग, लेट मी क्लैरिफाई। चिराग, सुमितो केमिकल मेरे नजर पर आज पहली बार आया। मुझे तो पता भी नहीं कंपनी करती क्या है। मैं चार्ट देखने वाला इंसान, मुझे पता नहीं कंपनी कौन से बिजनेस में है। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा टारगेट देखे जाएगा। सुमितो केमिकल में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया आज, इवन इन दिस फॉलिंग मार्केट। कल अगर आपको मिलता है तो खरीदना। Probably it can go to 600 levels. Probably it is trading at 470 to 450 levels. I don't remember the levels. कल मुझे सुबह बटन दबाने को मौका मिलेगा, मैं बटन दबा दूंगा। And Andy is over here, Vikas is over here, Ashu is over here, because we are going to end the space in next 5 minutes. So I'll not. Andy, so before we end this space, I'll have the closing comments from Govinda sir only. That overall outlook on the market and the sectors to look on. फिर अमित को ऐड कर सकता है। ठीक है, डाउन 600 पॉइंट ऊपर है, मुझे किसी ने मैसेज डाला। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोविंदा सर का क्लोजिंग कमेंट्स बेस्ट होता है। तो जब तक को एंड करना है, गोविंदा सर क्लोजिंग कमेंट्स देंगे और सेक्टर्स, मार्केट व्यू, I'll go with that. राजेश सर, कल मिलेंगे अपन या फ्राइडे पे क्लोजिंग पे ET स्वदेश पे कॉमन स्टॉक शेयर करेंगे। गोविंदा सर खाने बोलो ET पे, because tomorrow I am traveling to Lucknow. We have event at Lucknow. आरपी सर, एक चीज बोलता हूँ, सीके आज से टीवी पर नहीं आता है। सीके है ना, जब कोई भी टीवी पर नहीं होता था ना, मैं तब से सीके को जानता हूँ। सीके मतलब
मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है मार्केट में, ये मुझे कुछ बोलता है ना, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, मतलब मैं इसके अगेंस्ट कभी ना जाता। इसने एक बोल दिया इस आदमी से ना मिलना है, So my media appearances started in 2011. ना उसके पहले भी तो टीवी पे आता था, मैं तुझे टीवी पे देखता। नहीं 2011 I know the perfect date and time. 2011 I started my media appearances. Anyway, so my closing comment is only about Nifty and Bank Nifty. 16,400 downside max, 16,800 900 max on the Nifty on the upside. Bank Nifty 34,700 downside, 35,500 35,600 on the upside. कल क्या खुलेगा मुझे नहीं पता, जो खुलेगा पहले 15 मिनट का 1-2 लाइन ड्रॉ कर लो, और वेट कर सकते हो तो 1 घंटे का लाइन ड्रॉ कर लो, जो मैं रोज बोलता हूँ। उसके बाद डिसाइड करो क्या करना नहीं करना। अगर वो आज का लो रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है और 2 बजे भी उस लो के ऊपर खड़ा है, पक्का एक दिन के लिए BTST मार देना, पैसा फ्राइडे को पक्का बनेगा। So before we end, we'll give 2 minutes to Rajesh sir, closing comments and final Govinda sir, and then Amit you can end the space. Rajesh sir, short term view देना आप कि निफ्टी कल कैसे ट्रेड करता है, तो क्या लेवल पे बाय या सेल करना चाहिए, या बैंक निफ्टी पे? आई नो यू आर वेल वर्स विद दैट, एंड देन विल गो विद दिस मीडियम टर्म व्यू ऑफ गोविंदा सर एंड एंड द स्पेस। राजेश भाई उसमें बोलते ना, अरे आप आ गए तो बताइए क्या किया जाए। आप समझ गए ना किसकी बात कर रहे, आप आ गए। सर अगर आप चाहो तो मैं टीवी एंकर जैसे क्वेश्चन पूछना है ना वैसे भी पूछ सकता हूँ। क्या लेवल के ऊपर आप बुलिश होगे, क्या लेवल के नीचे आप बेरिश होगे, और आधे घंटे पहले का व्यू निफ्टी का लेवल कोई भी हो। सीखे वो तो है ना, सारे ऊपर नीचे के सब लेवल दे देंगे, इंसान को ट्रेड क्या करने का है। हमने तो आज हर्ष जब बैठा था ना, हर्ष जब बैठा था, जब मैं बैठा था, जब हम बात कर रहे थे, मेरा व्यू, अंकित का व्यू, सबका एक था भाई 16,400 16,500 हम खरीद के जाएंगे। हमारा व्यू एकदम क्लियर था कि भाई खरीदना है हमें। भाई आज सेम टाइम पे मैं राजेश सर सब ऑनलाइन थे टीवी पे, मैं 130 से 145 से ऑनलाइन था, आरबीआई का वेट कर रहे थे जो आएगा। हमारे सारे कॉल्स हमने जो पहले टीवी पे भेजे थे सबके फेल हुए रहेंगे, ओके, बट जो कुछ हो गया। कल क्या करेंगे, कौन से लेवल के ऊपर नीचे? तो कल 16,900 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आई लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मेरा स्टॉप लॉस कल के लिए 17,000 का होगा। 16,900 के आसपास अगर मार्केट मिलेगा तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे 17,000 के स्टॉप लॉस से। और बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से 36,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, 36,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये कल के लिए गैप अप के लिए ट्रेड सेटअप रहेगा। लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज आई थिंक गैप अप हो सकता है, और गैप अप होगा तो ये लेवल के आसपास मिलेगा तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। I'll add one more thing. No. I'll add one more thing. What RP said. अभी मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड से ऐसा गैप अप मिलता है ना, ऐसा गैप अप मिलता है, सिर्फ हाई मार्क कर देना। अगर वो हाई पहले 1 घंटे में ब्रीच नहीं कर रहा, फर्स्ट आर दैट हाई इज नॉट गेटिंग ब्रीच, टेक 50+ पॉइंट ओवर देयर एंड ट्रेड अ पुट ऑन द डाउन साइड। चांसेस आर वेरी हाई कि जो शॉर्ट करके गया ना वो टैप हो गया, बट वही मार्केट को नीचे गिराएगा। एंड हर्षित विल एक्सेप्ट मी दैट फैक्ट कि हमने इतनी बार वो मार्केट ऐसा ट्रेड किया है ना कि भैया गैप अप बहुत हो गया, गैप अप बहुत डाउन हो गया, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप ट्रेंड में गैप डाउन खुलता है, वो चीज खरीदने की या बेचने की होती है। मतलब मार्केट गिर रहा है, गैप अप करता है, दैट इज द बेस्ट सिग्नल टू सेल। मार्केट ट्रेंडिंग डाउन। Amit, we are ending. Last comment from Govinda sir. Let him finish and you end the space. Govinda sir, go ahead. Fundamental view, which stocks look good and which to be avoided in the short term because of the rate hikes.
and where are we headed in terms of overall market outlook in the P ratio wise? नहीं, so I'll take the last one first. PE ratio का जो आपने mention किया, I think मोटा मोटी agree हुए थे. Around 15,500 से 16,000 के बीच में it becomes a very attractive value to buy. But having said that, frankly, the way I look at it, या मेरा जितना attention रहता है daily basis में market पे, I cannot time it that way. So मैं हर fall पे, हर 500 point की fall पे, I try and add some portion of my capital that I want to deploy. So that is the way I use it. And इसलिए अगर मेरे को 16,500 भी मिल रहा है तो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा उस अपॉर्चुनिटी को ऐड करने के लिए a portion of my capital. That and sorry. Yeah, Govinda sir, go ahead, please. Sorry. Yeah. And दूसरा on the sectors, I'll not take stock names. On the sectors, I'll reiterate textiles, sugar, chemicals, pharma, CDMOs, and autocoms, and cement, of course. I forgot. Those are the sectors I am actively tracking. Sectors that I'll avoid will be financials for now. So if we have to look specify in financial, it will be NBFC or banks? Both for now, sir. Both for now. CK, I'll add a point Even over insurance here. company. Even insurance company. I'll add a point over here. I'm very bullish on PSU sector, PSU banks especially. Those indexes are giving a phenomenal kind of exposure to me about a upside being created over there, because they are go and see their results for last 8-10 quarters. Their NPAs have reduced. एक सेकंड सुन लेना भाई. NPA reduce हो रहा है, GPA reduce हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, जो आज तक नहीं हुआ था. 15 साल के वो सेक्टर तोड़ के आ रहे. आई एम बुलिश ऑन पावर सेक्टर, NTPC स्पेशली. मैंने NTPC का ट्रेड भी डाला हुआ है, 140 पे दिया था, आज 150 का भी चल रहा है. ठीक है, स्टॉप लॉस 110 ही है उसका. जब तक 110 नहीं तोड़ता मैं उस ट्रेड से एग्जिट नहीं होऊंगा. ठीक है. We can take a last question from Root Trader. Root Trader, last question. After that, we end this place. Andy, sorry today I couldn't add you because you joined late. Don't feel bad, but I'll love to listen to you. Root Trader. Yes, if he has a question, he can ask. अगर market view है तो end कर देंगे. हाँ, yes. Root Trader. And a specific request, have a profile picture. भाई कल से किसी की प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगी ना. कोमल, सीके, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ भाई, बिना प्रोफाइल पिक्चर के ना हम किसी को ऐड ना करेंगे. I know RP sir और गोविंदा sir rarely join करते हैं आजकल, but we'll message them, DM them that next time at least once a week they can join our spaces and add input to everyone. आशु आया है. We have 700 plus followers listening to it. आशु 2 मिनट में मार्केट व्यू देगा. 2 मिनट में मार्केट व्यू दे. चलो गुड नाइट. बुलिश है या बस. क्या बुलिश है भाई, अच्छा बुलिश है. मतलब खरीदना है क्या कल सुबह से? एकदम खरीदना है. आज का बस वीक हैंड्स निकल गया, मजा आएगा कल से. चलो गुड नाइट अमित. आई एम टेकिंग अ एग्जिट. हाँ एक सेकंड, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना. तो हमने खरीद लिया, निफ्टी स्टॉप लॉस लगाने का, स्टॉक बेसिस स्टॉप लॉस लगाने का? स्टॉक बेसिस पे. तो निफ्टी गिर जाएगा तब हमें निफ्टी बेसिस का भी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक? जिसमें सौदा है उसमें स्टॉप लॉस लगाना है सर. अरे तो मुझे स्टॉक बता दे, मुझे पता तू बहुत अच्छा ट्रैक करता है. I can be so proud, Ashu. I can be so proud speaking on the space. Thank you, Amit, for allowing me. I'll take a leave. Good night. Yes. I'm ending this space in next 2 minutes. So, Ashu. Thank you, Govinda sir, for joining on my request, and RP sir. Ashu, stock बोल फटाफट.
लोगों को ज्ञान ना सुनना है, स्टॉक सुनना है, क्या खरीदने का क्या बेचने का। स्टॉक खरीदूंगा तो मैं भाई आई एम हाफ अस्लीप, ठीक है, अभी ठीक है, खोल के देखना पड़ेगा। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। अगर मैं तुझे क्या सिखाया था आशु, आधी रात को उठ के मैं तुझे फोन करूं, तुझे लेवल याद रहने चाहिए स्टॉक के, मतलब मैंने तुझे जो सिखाया, तुझसे पैसा लेके सिखाया, मैं गारंटी देता हूं मैं इससे पैसा लिया था सिखाने के लिए, और इसको 3 बार सिखाया। याद रहना चाहिए। आंख बंद करके भी कोई पूछे ना उठा के रिलायंस क्या लगता है, जैसे डॉक्टर साहब को पूछते हैं ना रिलायंस क्या लगता है, डॉक्टर साहब बोलेंगे हाँ रिलायंस ये है, वो पूरे रिलायंस की रामायण गा देंगे। तो पूछूंगा ये स्टॉक कैसा लगता है, बोले लिस्टेड स्टॉक है क्या, मेरा पहला क्वेश्चन वो आता है लिस्टेड स्टॉक है क्या। तो वैसा याद रखने का अपना दिमाग में। तो आज भी कच्चा स्टूडेंट है, इसके लिए डॉक्टर साहब और आनंद है ना अच्छे स्टूडेंट है। So that was a lighter part. Because Ashu was my student. डॉक्टर साहब भी मेरे स्टूडेंट हैं। थाने नेक्स्ट डेट और टाइम को अपॉइंटमेंट देकर जानू पड़ी। भाई तू कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही? सॉरी मैंने बोल रही हूँ। थाने मैंने ये है, ये तुमने तमिल चालू कर दी, कौन सी लैंग्वेज चालू कर दी? भाई तेलुगु बोलूंगी ना। अरे अयो तुम्ही नको उनको परेशान करो। नहीं सो आई एम अवेलेबल यार एनी डे रेगुलरली, मतलब मैं सुनता रहता हूँ, कई बार आ नहीं पाता हूँ, बट या आई विल ट्राई एंड बी मोर। आएंगे ना KGF 2, पुष्पा एंड RRR। अगर ये मूवीज हिट हो रही ना, सुन ये मूवीज हिट हो रही है, थिएटर वाला पैसा कमा रहा है, बेसिक नॉलेज है ये। आज नहीं अगले क्वार्टर में इनका रिजल्ट दिखेगा, अगले क्वार्टर में रिजल्ट दिखेगा भाई। 2 क्वार्टर में और 2 अच्छी मूवीज आ जाएगी ना, पुष्पा जल्दी आ जाएगी, KGF 2 2023 में आ जाएगी, और कोई 2 साउथ इंडियन मूवीज हिट हो गई, मतलब ये तो बाजार को फाड़ देगी। तो PVR एज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, खरीद के जाने का। अब रणवीर जी को लास्ट क्वेश्चन है, बोलना भाई बोल। सर मैं कह रहा हूँ प्लीज बंद करें आज, कल। हाँ बंद करो। यस गुड नाइट अमित सर, थैंक यू गोविंदा सर, आरपी सर। With a lighter, with a very good note, with a very good note, with a very good note, हमेशा जय हिंद बोलना, हम देश के लिए हैं, देश के लिए कोई भी अच्छा सुनना, तू जय हिंद बोल रहा है ना, आजकल मैंने सुना है तू बहुत सारे म्यूजिक स्पेसेस में जाता है, तो थोड़ा म्यूजिक के साथ एंड कर। क्या गाता है तू आजकल वो म्यूजिक स्पेसेस में जाके? परफेक्ट। ये कोमल बताएगी। नहीं मैं देख रहा हूँ सर आप एंड करके म्यूजिक स्पेसेस में जाता है, तो कोमल गाएगी या तू गाएगा एंड करने के पहले? कोमल तो और तू दोनों म्यूजिक स्पेसेस में जाते हो, मैंने देखा है। कोमल और तू दोनों म्यूजिक स्पेसेस में जाते हो, तो एंड करने के पहले जो एंड करना है दोनों गा के एंड करो। ए देश मेरे, मेरी शान है तू मेरी जान है। कोमल एंड कर दे। गुड नाइट एवरीवन। अरे ये ठीक है, अमित एंड कर दे, गाना कल सुन लूंगा मैं तेरे पास।